Professor Srivastav's work is having a long list as scriptwriter for television, serial, and documentaries. It includes Tales of Lamas, Snatak, Uttarakhand, Ek Dashak, Surbhit Uttarakhand for Doordarshan, ZTV, and ET. When we move on to awards and recognition, again the list is too long. He has received the Best Documentary Award for the short documentary film Snatak in 9th Global Festival of Journalism organized by Film City, Noida. Special mention award by 4th Indian World Film Festival for the documentary Rishta Roti Ka, based on Indo-Afghan relations. Further, he received Prakhar Patrakar Samman in the media faculty category by Vishwa Samvad Kendra in the year 2017. As scriptwriter, director, Sir received Special Festival Mention Award in Noida International Film Festival 2K17 for the documentary film Juggler, Joker or Jambaz, based on portrayal of journalists in Bollywood movies. This film was also in the category of the award received for editing by the University Grants Commission. So, with great honor, I would like to invite Professor Dr. Amitabh Srivastav. The platform is all yours. Thank you, Dr. Shali. And first of all, I would like to thank your VC, Honorable Professor K.G. Suresh, because, and again, this Dr. Pavitra, Dr. Shali, and Dr. Gajendra, and all my colleagues in MCRP universities. MCRP is very close to my heart. We have worked together long back, and still we are in touch. Your experts come to our universities. Your vice chancellors have expressed his valuable thoughts with our students. So there is a long, strong correlationship between the MCRP university and our Manipal University, Jaipur. So first of all, I would like to thanks to the eminent attendees this August gathering. You persons are teaching, you persons are communicating well with the audience, with the students and all. And still, because everywhere, even be it me or you, unless and until there is a student who resides in us is alive, there is no sense of being a teacher. जितना हमको पता होगा, जितना ज्ञान होगा, उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर एक विद्यार्थी बचा रहे और उस वह विद्यार्थी को जानने की अभिलाषा, को जानने की आकांक्षा जो है, वही हमारे अंदर उस शिक्षक को बनाती है। क्योंकि तभी जब तक हम ऑडियंस की जगह पे जब बैठते हैं, तब हमको शायद समझ में आता है कि हम कम्युनिकेटर का रोल क्या होता है। तो जैसा कि ऑसगुड आप जानते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग एक लगातार बदलने वाले चेहरे हैं। एक समय में हम उस पाले में होते हैं और जब हम उस पाले में रहते हैं तो अपने वाले पाले को बेहतर समझ पाते हैं। तो थैंक्स for providing me this particular opportunity, and let's begin the session without wasting the time. Yeah. So kindly start sharing the slides. First, next. So let's begin with this. कुछ चीजें ऐसी होंगी कि which are might be quite basics for us, but as Tendulkar used to say कि जब भी शुरुआत हो, चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी हो जाओ, the golden rule is always that return to the basics. तो आपको मजबूत अपने पाले पे खड़े रहने के लिए जरूरी है कि कई बार कुछ बेसिक्स चीजों को और पक्का कर लेना चाहिए। एक दो स्लाइड्स कुछ बेसिक चीजें जो जाननी शायद जरूरी है कि this what Encyclopedia Britannica says about the visual art, क्योंकि हमारा जो विषय है आज का कि visual art and writing, visual art and writing, there is a strong correlation, but before coming to that particular correlation, let's understand first what the Encyclopedia Britannica states about this visual art. So art that meets the eye and evokes the emotion through the expression of the skills and the expression. दो चीजें बहुत अहम हो रही है कि
ये जो चाक्षुष सौंदर्य जिसके लिए एक शब्द भारतीय दर्शन में आया है, बहुत अहम रखता है कि किस तरह से वो भावना अपने ऑडियंस के अंदर पैदा करें। क्योंकि ईश्वर ने जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, उनमें से आंखों का एक खास योगदान है। दृश्य जगत में जब हम आते हैं, वो एक खास वो उसके बिना बात चीजें समझ में नहीं आती। एक समय में अकबर और बीरबल के बीच में जब बात हुई, उन्होंने कहा कि सच और झूठ में अंतर क्या है। उन्होंने कहा सच और झूठ में उतना ही अंतर है जितना आंख और कान के बीच में है। जो हम देखते हैं वो सच मान लिया जाता है, और जो सुनते हैं उसके झूठ होने की गुंजाइश रहती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि जब तक हम देख लेंगे, मैंने देखा है, ये बात कहनी, तो सत्य का आभास तभी होता है कि जब तक आप उसका साक्षात्कार कर लें। तो ये जो देखना, जो जो वेदों में शब्द आया है कि मंत्रों को भी कहा गया कि दृष्टा भाव, नो डाउट वो सुनने की चीज है, लेकिन जब आप उनकी अनुभूति दृश्य रूप में कर लेते हैं, दृश्य रूप में यानी अनुभूति इतनी प्रखर हो जाती है कि वो एकदम नजर आने लगे, तो उसके लिए शब्द इसीलिए कहा है दृष्टा। तो ये जो दृष्टा का भाव है, देखना, ये बहुत अहम है। इसलिए इस विजुअल आर्ट में, इसलिए ये सारी चीजें बहुत मायने की हो जाती हैं कि इसलिए विजुअल आर्ट यानी कोई भी चीज जब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है, हम उसको सत्य मानते हैं। उसकी अनुभूति, उसका एहसास, उसको 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 जीने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं जब वो हमारे सामने नजर आती है। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात जब आ रही है विजुअल आर्ट की, तो विजुअल आर्ट एक इंटायर रेंज है। विजुअल आर्ट एक इंटायर रेंज है, और विजुअल आर्ट में हम ये कह नहीं सकते कि कोई भी कह सकता है कि ये 4 या 5 आर्ट्स विजुअल आर्ट्स हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति रही है, और इसमें एक पूरा दौर रहा है कि जिसमें अनगिनत विधाएं जिसे कहें, देयर आर एन नंबर्स ऑफ द स्टाइल्स where these visuals are being depicted। और ये पहली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये अजंता की पेंटिंग है, पद्म पाणी बोधिसत्व की, हाथ में कमल रखा हुआ, जो मुद्रा है कि मतलब सदियां बीत गई और ये पेंटिंग आज भी आकृष्ट करती है। वो भाव, वो करुणा आंखों के अंदर, वो जो मुकुट है उसके एक एक रत्न को जिस तरह से तराशा गया है, वो पूरा सौंदर्य, और उस बीच में, उस वैभव के बीच में भी बोधिसत्व के अंदर जो करुणा का भाव है, वो किस सहजता के साथ कुछ लाइनों में, कुछ बहुत घना, आप देखेंगे चेहरे के भावों पे बहुत ज्यादा लाइनें नहीं डाली, लेकिन कुछ शेड्स और कुछ लाइनों में कितनी सरलता के साथ उसको अभिव्यक्त किया है कि बोधिसत्व की जो मुद्रा है अजंता की गुफाओं पे, वो आज भी विजुअल आर्ट के बारे में एक प्रतीक बनी हुई है भारतीय सौंदर्य का। दूसरी चीज हम देखते हैं नटराज की मुद्रा, इस के बाद जो एटॉमिक सेंटर स्विट्जरलैंड का, वहां भी मूर्ति प्रदर्शित की गई है। इस मूर्ति की न जाने कितनी विशिष्टताएं आज तक प्रकट की जा रही है कि किस तरह से ये एक अकेली मूर्ति सृजन से लेके विध्वंस तक सब कुछ प्रकट कर रही है। उसके अंदर एक विरक्ति का भाव भी है, उसके अंदर करुणा का भाव भी है, उसके अंदर पूरी मूर्ति के अंदर एक अलग सी लय है। अगर आप देखें पूरी मूर्ति को, अगर कुछ स्केचेस के अंदर और एक जिस तरह से म्यूजिक के अंदर लय होती है, अगर आप गौर के देखें तो वो आपको उस मूर्ति के भावों में नजर आ रही है कि किस तरह से हाथ ऊपर पुश किए हैं, यानी सांप की कुंडली से लेकर के हाथों के बीच की जो लय है, और पूरी जो अग्नि का चक्र है, अपस्मार जो इसमें दिख नहीं रहा, जिसके पैर, जिसके ऊपर वो खड़े हैं, वो जो रहते हैं, ये सारी जो चीजें हैं उनके बीच वो कंट्रोल करना, और इसीलिए इसको सर ने अपने सामने वहाँ प्रदर्शित किया है। ये अपने आप में एक ऐसी मूर्ति है जो आज भी भारतीय कला को, खासतौर से विजुअल आर्ट को, एक सिंबल बनी हुई है। पूरी दुनिया आज भी इसकी सराहना करती है। और तीसरा जो हमारा मास्टरपीस ताजमहल, बैलेंस ऑफ द आर्ट, जिसके अंदर ये इंडो इस्लामिक आर्ट दोनों ही चीजें कहा जाता है, प्रकट है। और इसके अंदर जो परफेक्ट प्रपोर्शन रहता है, सादगी है, सौंदर्य है, एक ही कला के अंदर सारी चीजें कैसे आती हैं, और ये सारी चीजें मतलब कलाकार बाहर के आए, उन्होंने भी इसमें भूमिकाएं अदा की, लेकिन पूरी दुनिया में ये एक चीज केवल भारत के अंदर ये चीज आई, ये आकार लेके आई। तो सौंदर्य, प्रेम और सारी जो चीजें हैं इसके अंदर वो स्पष्ट होती हैं।
और इसी तरह से ये केवल 3 सिंबल्स हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये केवल इन 3 सिंबल, लेकिन मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, शिल्प कला हो, ये सारी कलाएं जो हैं ये विजुअल आर्ट का प्रतीक है, और इनका शब्दों के साथ जो नाता होगा इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और किस तरह से सिनेमा के बारे में बात होती है, किस तरह से सिनेमा इसके साथ जुड़ता है, इस पर हम अभी आगे बात करते हैं। टेक्निकल टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आ रही है कि आई थिंक वन स्लाइड गॉट मिस्ड, या एक स्लाइड जरा पीछे चलिए, या सर यहाँ पर, हाँ दिस, या नाउ इसी में जब हम सिनेमा के बारे में बात करते हैं तो उसको ये निश्चित रूप से विजुअल आर्ट के रूप में इसको विशेषज्ञ मानते हैं कि दिस सिनेमा, क्योंकि प्रोमिनेंट, नो डाउट इसके अंदर ऑडियो है, लेकिन प्रोमिनेंस क्या है, विजुअल मीडिया जिसमें प्रोमिनेंस रखता है, तो इसको इसलिए खासतौर से इसके अंदर रखता है। और खास तौर से ये समकालीन होने का, कंटेम्प्रेरी मींस आज के दौर का होने के बावजूद, आज के दौर में नो डाउट इसने 100 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर हम सदियों का अगर विजुअल आर्ट की तुलना में देखें तो इसको हम कंटेम्प्रेरी मीडियम के तौर पे इसको मानते हैं। और इसके साथ इसकी उससे भी बड़ी खूबी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल आर्ट, यानी कॉम्प्रिहेंसिव मींस इट इंक्लूड्स ऑल, यानी आप इसको देखें कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल नामों के बारे में बात करता हूँ कि जिन लोगों ने इसकी सराहना की, कि मान लीजिए हुसैन साहब ने इससे पूछा गया कि आप इतने बड़े आप पेंटर हो गए, दुनिया आपको मान रही है, आपको क्या सवाल हुआ कि आप इस समय फिल्म बनाना चाहते हैं? वो कैसे फिल्मकार थे, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्यों एक बड़ा पेंटर जिसने नाम हासिल किया, लेकिन वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर इसमें आ जा रहा है, फिल्म मेकिंग। हुसैन साहब ने कहा कि देखिए इस वजह से कि जिसके अंदर जो जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, जो चीजों को जोड़ने की जो बात है, वो दूसरे किसी माध्यम में नहीं है। तो यानी हर चीज, यानी अगर आप देखो कि आप सेट डिजाइनिंग है तो आर्किटेक्चर को, यानी उस विजुअल आर्ट को अपने अंदर संभाल लेता है। आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग देखते हैं तो उसके अंदर वो चीजें संभाल लेता है। कितनी चीजें, पेंटिंग्स, मेकअप, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो न जाने कितनी कलाओं को एक साथ अपने अंदर समा लेना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और जैसा कि लॉन्ग बैक मैक्लुहान ने भी कहा था कि हर नया माध्यम पिछले दूसरे माध्यम को अपने अंदर सजो लेता है, समा लेता है, और ये उस माध्यम की ताकत को बयां करता है। The effectiveness of the one medium will be measured how much that has the potential to absorb the other mediums. तो एक नए माध्यम ने दूसरे माध्यमों को अपने अंदर रखा हुआ है, उनको खत्म नहीं किया। उसी खूबसूरती के साथ आज भी आपने बाहुबली देखी है तो देखते हैं सेट डिजाइनिंग का क्या मतलब है, और वो सेट डिजाइनिंग अपने आप में एक किस्म का आर्किटेक्चर है। उसके अंदर आप देखते हैं कि पेंटिंग्स और जो बैकग्राउंड है तो वो आपको नजर आता है। तो हर किस्म की कला आज के दिन हम इसलिए सिनेमा पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके जरिए हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विजुअल आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात मैं इसमें कहूंगा कि क्यों हम सिनेमा पर इसलिए बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने आज भी इस चीज को माना है कि सिनेमा शेप्स द सोसाइटी। अगर आप ना माने तो कभी शांति के साथ कभी अपने दादाजी की फोटोग्राफ देखें और देखेंगे कि उस दौर में मैंने भी देखी कि उस दौर के जो कलाकार होंगे उनसे कहीं ना कहीं उनके मोस्टेशस, पहनने की स्टाइल, कपड़े पहनने की स्टाइल, वो कहीं ना कहीं बदल, जरूरी नहीं उन्होंने सीधे देखा हो सकता है कि आसपास के लोगों को देख करके देखा हो, लेकिन जो उस दौर में फिल्म का जो फिल्मों के पर्दे पे चल रहा था वो 10 से 20 साल के अंतर वो सारे अंदर अंदर हमने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यानी हमारे बालों की स्टाइल है, हमारे पहनने की स्टाइल है, और बहुत तक हमारे सोचने की स्टाइल जो है वो सिनेमा नियंत्रित कर रहा है। और वो चाहे पॉपुलर सिनेमा हो चाहे वो आर्ट सिनेमा हो, दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों का अपना खास ताकत है। दूसरी बात हम ये कहें कि ये अगर जिस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो चाहे कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, दोनों लोगों ने ही सिनेमा को पावर दी है। अगर आप देखें कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर हॉलीवुड की फिल्में हैं तो वो दिखाती है कि अगर दुनिया को कोई बचा रहा है तो कौन बचा रहा है, कि हॉलीवुड का स्टार आएगा, जेम्स बॉन्ड आएगा, वो बचाएगा। ठीक है, स्टार वार्स हो रही है, पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को बचाने वाला कौन है? एक अमेरिकन है।
धीरे धीरे कई एक सिनेमा एक इस तरह का नैरेटिव सेट कर देते कि दुनिया का कोई रक्षक है तो कौन है विलन। अब वो सही है गलत है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, लेकिन इस तरह का नैरेटिव सेट करना, इस तरह की चीजें सेट करना कैपिटलिस्ट मीडिया ने किया और वो सिनेमा के जरिए किया। और दूसरी बात, हम जहाँ तक कम्युनिस्ट मीडिया के बारे में बात करें तो आप जानते हैं लेनिन के बारे में, और लेनिन निश्चित रूप से उनकी अपनी जिंदगी किताब पर आधारित थी। आई एम नॉट प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी, मैंने इसलिए दोनों चीजों के बारे में बात की। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कैपिटलिस्ट हो, सब इस सिनेमा को मानते हैं। लेनिन से जब कहा गया कि किसी एक माध्यम पर आप कंट्रोल करना चाहे दुनिया को बदलने के लिए, विच पर्टिकुलर मीडियम दैट वुड बी, व्हाट लेनिन सेड, इट विल बी द सिनेमा। अब एक किताब ने जिसकी जिंदगी बदल दी, एक किताब ने जिसने दास कैपिटल ने जिसने पूरा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है सिनेमा को अपने हाथ में रखना। तो वो चाहे कंट्रोल करके, चाहे उस पर बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से लेकर सारी चीजों को लेकर के, लेकिन नो डाउट दे कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने इसकी पावर को समझा। जो कंट्रोल करता है वो भी इसकी पावर को जानता है, वो जानता है कि इसके अंदर ताकत क्या है। हमारे यहाँ भी आपातकालीन में कंट्रोल किया गया, like another 2 weeks so they can actually work on the fields। नहीं तो अगर हम 28 को ही बताएंगे कि ये fields नहीं है, अलाइन करें। yeah, is there any problem? Yeah, hello। नहीं सर, किसी का माइक ऑन हो गया था। Okay, no, am I clearly audible? जी सर। कोई आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मैं बहुत संक्षेप में एक संकेत के रूप में बात करता चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सिनेमा से जुड़े हुए होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, तो कुछ संकेत में आगे चल करके बढ़ता चला जा रहा हूँ, नॉट गिविंग दैट मच डिटेल्स। आप भारत के दौर में देखें तो आपने देखा कि दादा साहब फाल्के ने भूमिका एक बड़ी अदा की, लेकिन शायद इस चीज पर कम चर्चा हुई कि ये दादा साहब फाल्के ने जिस तरह से माइथोलॉजिकल फिल्में बनाई, उसका इस्तेमाल किया था, कहाँ से आया। और आज इतिहास इस बात को साफ कर रहा है कि दादा साहब फाल्के बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे, और जिस तरह बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए, माइथोलॉजिकल सिंबल्स के जरिए अपने मैसेज को देना शुरू किया, उसी तरह उन्हीं की प्रेरणा थी कि उन्होंने माइथोलॉजिकल सिंबल्स को इस्तेमाल किया, और इस तरह की फिल्में, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे वो काली दमन हो, इसके जरिए वो ब्रिटिश सत्ता पर सीधे चुनौती दे रहे थे। और धीरे धीरे वो भावनाएं कि अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, अंग्रेज जो है वो एक तरह से सिंबल है, उनकी जो पावर है वो एक तरह से वो कालिया की तरह है, इस तरह के चीजों के जरिए जो न्यूआंसेस है, जो बारीकियां हैं, उसके जरिए वो बात कही जा रही है। और बाद में आप देखिए सोशल रिफॉर्म्स ने एक बड़ी भूमिका अदा की, जो आज तक नेतृत्व कन्या से अगर आप बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद मदर इंडिया, और एक लंबा दौर चलता चला आया है जिसमें सोशल रिफॉर्म्स में फिल्मों ने बेहतरीन भूमिका अदा की। तो मैं इस केवल हमारा कहने का मतलब ये कि सिनेमा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको केवल एक एंटरटेनमेंट का मीडिया मान करके नहीं रह सकते, न ही कि एक आर्ट के तौर पे देखें कि इसको स्टडी करके इसका सीधे एक सोशल कनेक्ट है, एंड सिंस इट इज शेपिंग द सोसाइटी, उसको बहुत महत्व देने की जरूरत है। कैन यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम बात करें, एक मिनट जरा राइटिंग वाली स्लाइड पे प्लीज, एक मिस हो गई थी, राइटिंग वाली स्लाइड पे पीछे आ जाइए। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें, सिनेमा इतना कुछ कर रहा है, तो ये राइटिंग की बात कहाँ से आ गई, क्यों राइटिंग की जरूरत है, और ना करें राइटिंग तो क्या दिक्कत है। तो पहली चीज तो ये कि ये राइटिंग का अगर बीते कल से लेकर के, जो आदिकाल से लेकर के आज तक जो लिखना है, ये ही आधार रहा है। और अगर हम अपने मित्र और दुनिया के हर धर्म के बारे में बात करें, तो आज भी शायद उस धर्म को संचालित करने वाली ताकत एक लिखी हुई किताब कर रही है, ठीक है। चाहे वो हिंदुइज्म के बारे में बात करें, चाहिए उसमें वेदों के बारे में बात कर ले, पुराणों के बारे में बात कर ले, कुरान शरीफ के बारे में बात कर ले, बाइबल के बारे में बात कर ले, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात कर ले, वो लिखी हुई किताब, यानी इतने साल से वो बिना वो लिखा हुई चीज तय नहीं कर पा रहे। तो धर्म भी जिस चीज को महत्व देता है, धर्म भी जिस चीज के साथ शिद्दत के साथ सिर झुकाता है, अदब करता है, वो लिखना है। तो लिखने के महत्व को हमको इस दृष्टि से समझना पड़ेगा। और आपके यहाँ अगर आप देखें, तो अगर इसको कल्चरल एक सिंबल के तौर पर देखें, तो ये जो सिंबल्स हैं आपके यहाँ, तो सदियों के साथ ईश्वर को एक लिखने के लिए जब जरूरत पड़ी तो कहा गया ईश्वर को उतरना हो। वेद व्यास ने कहा गया जब आपको पूरी महाभारत लिखनी है, मैं बोलूंगा,
उनका बोलना तो ठीक है, श्रुति परंपरा ठीक है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए अनवरत लिखना है और समझ करके लिखना है। उसके लिए क्या कहा कि गणपति कौन है, यानी ये महत्व देता है कि लिखना कितनी अहम चीज है। और आज भी आप बात करेंगे कि ये महाभारत जो है आज तक कलाकारों को, कथाकारों को प्रेरित कर रही है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से हो, इस पर हम आगे बात करेंगे कि वो महत्व दे रही है। और अगर इसमें तीसरी चीज जो लिखने के बारे में है कि पहली चीज जो है, आप इमेजिनेशन पर्दे पर बाद में उतारेंगे, पहली चीज है कि आपका इमेजिनेशन को आकार आप कैसे दे सकते हैं। फिल्म बनाते समय आप एक समय झिझक सकते हैं कि पहले हम एवरेस्ट पे, आप कल्पना करें कि मैं एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ा हूं और अचानक वो जो पात्र है वो वहां से छलांग मारता है और पैसिफिक यानी प्रशांत की गहराइयों में कूद जाता है। एक वाइल्ड गेस, मतलब वाइल्ड इमेजिनेशन है। इसको लेखक एक सेकंड में कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि मैं आज इस लोक में हूँ, अचानक पल भर में मैं 5000 साल पीछे चला गया, उसके बाद 5000 साल आगे आ गया। ये जो इमेजिनेशन है, जो मनुष्य है, वो कल्पना के आधार पर ही उसने आज तक जो भी कुछ हासिल किया वो कल्पना के आधार पर। और उसका जो कल्पना का जो साथी है, और साथी होना और उसका स्थायित्व देना कल्पना को, वो लिखना है। बिना उसके आप वो चीज कर नहीं सकते। और जब आप उसको स्थायित्व दे देते हैं लिख करके, उसके बाद स्टार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना। यानी अगर आपने चाहे हवाई जहाज बनाया हो, चाहे जो कुछ बनाया, उसके लिए उस कल्पना को पहले रखना, उस कल्पना को कोई एक स्थायी आकार देना और उसके बाद उसको उतारना। तो यही स्क्रिप्ट में भी है कि जब आप एक कल्पना करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं, एंड देन यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दैट, उसको फिर आप पर्दे पर उतारते हैं। पहले पन्ने पर उतारते हैं, और जब पन्ने पर उतारने के बाद समय आता है उसे पर्दे पर उतारते हैं। तो आज तक शायद कोई भी ऐसी फिल्में नहीं बन रही जो कि बिना लिखे कह दिया जाए कि सीधे सीधे हम आ जाएंगे कहाँ पर, पर्दे पर। ऐसा साहस लोग नहीं कर पा रहे, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट और ये लिखने के महत्व के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। कैन यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हमारा मकसद क्या है कि ये दो चीजें हो गई। तो हमारे इस लेक्चर का मतलब है कि दो चीजें, विजुअल आर्ट एंड राइटिंग, जो आपका कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्ट एंड राइटिंग। तो दो चीजें हैं कि एक तरफ ये है कि विजुअल आर्ट हमारे सामने है, यानी सिनेमा को हमको, चूंकि हमारा फोकस जो है इस पूरे एफडीपी का सिनेमैटिक आर्ट है, तो इसलिए मेरा ज्यादा फोकस सिनेमा के ऊपर है। तो पूरी दुनिया में हम सिनेमा के महत्व को देख रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट साइड, जैसे हमने बताया, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, सारी चीजें उतारनी है, सारी चीजें पर्दे पर लेकर के आनी है। और वो जो सारी चीजें उतारनी है, उसको उससे पहले कुछ लिखना है। यानी वो लिखना जो है कि ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज हो गई कि जिसके आधार पर सब कुछ सृजा जाना है, सब कुछ रचा जाना है, सब कुछ पर्दे पर लाना है, उससे पहले वो कागज पर उतरे। अब एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ तो सिनेमा के पास सारे एसेट्स, यानी उसके पास संगीत है, आर्किटेक्चर है, सारी चीजें वो लेकर के सामने पर्दे पर आएगी, और आपके पास सिर्फ एक कलम है, आज के दिन केवल कीबोर्ड, जो कि और इस कीबोर्ड के जरिए आपको वो सारी चीजें उतार लेनी। तो सिनेमा के पास इट इज हैविंग एन नंबर ऑफ एसेट्स, और आपके पास सिर्फ एक पेन है, और उस पेन के जरिए किसी वो संगीत कैसा होगा, वो म्यूजिक कैसी होगी, दिख कैसा रहा होगा, एक फुसफुसाहट भी है, एक मौन भी है, तो वो मौन भी आपको लिखना होता है। तो आप इनफैक्ट यू क्रिएट अ वर्ल्ड, आप एक दुनिया रचते हैं लिखने के जरिए, जिसको कि सिनेमा अपने सारे एसेट्स के साथ मिल करके करता है। तो लिखना अपने आप में कितनी अहम चीज है कि एक मौन को परिभाषित करना, दृश्य को, और अकेले एक व्यक्ति नहीं, जितने लोग वहां, एक एक बारीकी आपको वो उसके अंदर उतारनी। आप जानते हैं जितने भी महान सिनेकार हुए, सत्यजीत रे, उन्होंने देखे कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं या तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, या लेखकों के साथ उनका एक बहुत ही गहरा आत्मीय नाता था, इसको छोड़ करके नहीं कर सकते। अभी चाहे आप ये सिलसिला, चाहे आप मैंने कहा कि आप गुरुदत्त के बारे में बात करें, आप वहां से बात करें, राज कपूर के बारे में बात करें, ये सब लोग अगर खुद नहीं लिखते थे तो लेखकों के साथ इनका इतना गहरा नाता था कि एक एक शॉट पे डिस्कस करना, एक एक चीज पर डिस्कस करना, और वो चीज शुरू होती है मतलब आमिर खान तक अगर आप देखें तो वो वही बारीकी के साथ एक एक लेखक के साथ चर्चा, एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा, और पूरी ईमानदारी के साथ अगर पूरा संघर्ष रहा, नहीं माना, अभी लगान के ऊपर बात चल रही थी फिर से दोबारा,
तो उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने मना किया और एक एक शॉट पे डिस्कस करके रिजेक्ट कर किए गए आइडिया, लेकिन बार बार कन्विंस करके कि वो एक मास्टरपीस तैयार हो रहा है और फाइनली लेखक अपने आप में इसमें एक अहम भूमिका अदा करता है। तो एक अलग दुनिया को रचना, एक क्रिएटिंग a world through worlds, what cinema does with all its assets, यानी सारी संसाधन, सारी चीजें वो झोंक देता है, अरबों रुपए की चीजें, ठीक, और कितने लोग हैं और वो सारी चीजों के उसके बीच में जो है वो कौन है, उसके लिए एक लेखक है। तो जिस तरह से कहा जाता है कि वट वृक्ष जो होता है वास्तव में क्या है, बीज के अंदर छिपा होता है, उसी तरह से लिखना, जो शब्द हैं उन शब्दों के अंदर वो पूरा सृजन छिपा हुआ है। तो ये अपने आप में सामान्य चीज नहीं है कि लिख देना और उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है और बिना महत्व दिए इसको हम आगे नहीं। हो सकता है कि हम खुद न लिखें, लेकिन लिखने को अगर हम महत्व नहीं देंगे तो हम शायद अपनी चीज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, अपनी कृति के साथ, अपनी क्रिएशन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई व्हाटएवर वी आर डूइंग। या कैन यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जल्दी सीधे आते हैं कि अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। और स्क्रिप्ट के लिए जैसे आपने कहा कि शब्द क्या है, पटकथा। हिंदी के शब्द क्या है, पटकथा। पट माने पटकथा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पटकथा दो, इसके पट के दो अर्थ होते हैं। पट माने एक तो होता है प्रमुख और दूसरा पट माने होता है पर्दा। यहाँ पे पट का मुख्य भाग है पर्दा। हालांकि इसको आप पट माने मुख्य के रूप में ले, जैसे हम लोग पटरानी शब्द इस्तेमाल करते थे, मेन, लेकिन यहाँ पे पट का जो मुख्य भाव है पर्दे के लिए लिखना, विजुअल राइटिंग। पर्दे के खास तौर से क्या, जब आप लिखें तो ये विजुअल राइटिंग हो तो बहुत जरूरी है कि बिना इसके आप लिख नहीं सकते। और कैसे लिखते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके लिखने से पहले एक चीज को फिर ध्यान दें, एक बात कही जाती है कि एक अच्छी गुड स्क्रिप्ट कैन रिजल्ट इनटू अ बैड फिल्म, बट नो गुड फिल्म कैन बी डिलीवर्ड विद अ बैड स्क्रिप्ट। यानी अगर अच्छी आपने स्क्रिप्ट लिखी तो हो सकता है कि निर्देशक जो है वो मतलब एफिशिएंट नहीं और उसने फिल्म को बर्बाद कर दिया। इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, इसकी चीजें हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं कई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मास्टरपीस बन गया और कहते हैं कि स्क्रिप्ट तो कूड़ा थी। तो यानी अगर आपको कुल मिलाकर के एक मास्टरपीस क्रिएट करना, तो मास्टरपीस क्रिएट करने की एकमात्र अगर पहली शर्त अगर हो रही है तो क्या हो रही है, अ गुड स्क्रिप्ट। और आज भी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो एड की स्क्रिप्ट के बारे में बात हो, चाहे फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बात हो, और बड़े बड़े फिल्म मेकर, क्योंकि नए आइडियाज की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक राइटर ही सब कुछ क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसीलिए चाहे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग आज भी नए राइटर्स को डिमांड कर रहे हैं और तो राइटर्स क्लब्स बन गए हैं जिनमें इस तरह के कंट्रीब्यूशन दिए जा रहे हैं। कैन यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देयर माइट बी मैनी न्यू फेसेस। मेरे लिए इस मामले में हमेशा एक चुनौती रही कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कला के बड़े माहिर होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये रुचि का विषय होगा। तो ये दोनों के बीच में ब्लेंड करना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीजों के बीच में एक साझा करते हुए चीज चलूं। तो दो बातों के बारे में बात होती है कि बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, आगे चलकर हम कैंपेन से लेकर सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरी फिल्म को अगर हम समेटें, पूरी पटकथा को समेटे, तो मुझे लगता है कि दो ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है कैरेक्टर एंड कन्फ्लिक्ट। इसको इलेबोरेट किया जा सकता है नंबर्स ऑफ पीसेस में, लेकिन ये कैरेक्टर और कन्फ्लिक्ट यानी चरित्र और संघर्ष दो चीजें हैं। और आगे चल करके हम बात करेंगे कि किस तरह से चरित्र और कन्फ्लिक्ट के बीच में एक रिश्ता क्या होता है। और चरित्र का मतलब मुख्य चरित्र ही नहीं, कोई भी एक चरित्र हो सकता है, और वो चरित्र, उस चरित्र का कन्फ्लिक्ट के साथ क्या रिश्ता। बहुत सारे फिल्म मेकर कहते हैं अगर आप अपनी कहानी एक लाइन में कह सकते तो, और जिसमें कैरेक्टर भी हो और कन्फ्लिक्ट भी हो, तो आपकी फिल्म जो है वो सक्सेसफुल है। एक लाइन में अपनी फिल्म को बदल, क्योंकि वो क्लैरिटी बड़ी जरूरी कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हो। तो कैरेक्टर को, और बाद में वही कैरेक्टर कितनी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ किया जाता है, वो कन्फ्लिक्ट कैसे आगे बढ़ता है, ये चीज बहुत अहम हो जाती है। अब हम एक एक करके दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर एंड द कन्फ्लिक्ट। इन दो चीजों को ध्यान रखिए। कैन यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चरित्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी चीज आती है,
ये चरित्र है क्या। आपके यहाँ पे एक लिटरेचर के बारे में बात करें तो आपके यहाँ धीरोदात्त नायक हुआ करते थे पुराने में, और जिसमें एक धीरोदात्त मतलब समझे कि एक सेट रूल उसको फॉलो करने इस तरह के कैरेक्टर्स हुआ करते थे। वहां से लेकर के आज के दिन जो ग्रे कैरेक्टर आ गए हैं जो फिल्मों में, उस तरह के कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर्स आपके यहाँ इम्पोर्टेंट। हॉलीवुड की फिल्में देखें तो जोकर से लेकर के तमाम फिल्में आ रही हैं जिसमें एक अलग तरह का कैरेक्टर अहमियत रख रहा है। तो ये कैरेक्टर है क्या, इसको समझने की जरूरत है कि जो सिनेमा में आप जानते हैं कि दो तरह से हम बात करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि एक शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट माने कि वो जिसके नजरिए से फिल्म लिखी जा रही है, जिसके नजरिए को की पुष्टि है, जिसके नजरिए की जो है फिल्मकार कर रहा है, वो प्रोटैगनिस्ट है। क्योंकि अगर आप एक ही फिल्म देखते हैं और अचानक आप पाला बदल लेते हैं और उस पाले को बदल करके दूसरे ढंग से देखना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि वही आदमी आपको विलेन नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, यानी ये जो मेन कैरेक्टर है जिसके नजरिए से हम फिल्म देख रहे हैं, वो हमारा मुख्य चरित्र है। और उस मुख्य चरित्र कोई भी हो सकता है। वो मुख्य चरित्र एकदम आम आदमी हो सकता है। वो आम आदमी, जैसे अगर आप फिल्मों के बारे में बात करें तो आम आदमी की फिल्मों में जैसे अगर हम देख रहे हैं कि 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी, अगर इस किरदार पर हम बात करते हैं कि एक ऐसा आदमी जो गांव में था, अपनी जमीन छुड़ाना चाहता है, शहर आता है, कलकत्ता आता है और हाथ रिक्शा खींचने लगता है। अब इस किरदार को करने से पहले वो वेल सूटेड ब्रिटेन से आए हुए एक संभ्रांत परिवार के बलराज साहनी रेडियो में आवाज दिया करते थे। क्या खूबसूरत पर्सनालिटी थी। और वो पर्सनालिटी ने जब रिक्शा खींचने का वाले का जो किरदार किया, हाथ रिक्शा खींचने वाले का, वो अद्भुत था। और उसके लिए इन्होंने जो मेथड एक्टिंग थी वो रहे उनके बीच में। कलकत्ता की सड़कों पर इन्होंने रिक्शा चलाया और तब जाकर वो किरदार वो जिंदा। दूसरा किरदार आप देखते हैं कि एक कवि का जो किरदार है प्यासा। अब 50 के दशक में जब नेहरूवियन इरा एकदम पीक पे चल रहा था और उस समय अगर एक आदमी अपनी फिल्म में एक लाइन लिख देता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। अब सिर्फ ये मतलब ये फिल्म ऐसी थी कि जिसको देख करके उस दौर में मतलब नेहरू जी वो सिनेमा हॉल छोड़कर चले गए फिल्म को। ये जो रोल, ये जो पोस्चर है, केवल इस पोस्चर में प्यासा का कि मतलब इसकी तुलना जीसस क्राइस्ट से की गई है कि इसकी व्यवस्था किस तरह से एक व्यक्ति को सलीब पर चढ़ा देती है। दिस वाज द क्लासिक पोस्चर। केवल इस पोस्चर पे रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं और अपने आप में अद्भुत ये पोस्चर है। और ये जो तीसरा जो पोस्टर अगर आप ये देखें, जो कैरेक्टर इसमें से उठाया गया अमिताभ बच्चन का, ये सीन है मैं आजाद हूँ का, जो पहले सत्यम के नाम से आ रही थी। किस तरह से सिनेमा एक माहिर कलाकारों को, माहिर से माहिर निर्देशकों को दुखी कर देता है। वो भी ये फिल्म उसका उदाहरण है। और आज भी अमिताभ को शायद इस बात की टीस है। अभी उनके हाल में एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने फिर चर्चा की है इस फिल्म के बारे में कि बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में बतानी जरूरी है और कुछ ऐसी हैं जो वो अभी नहीं बताना चाहते, बाद में बताना चाहते हैं कि क्या हालात थे कि उन्हें ये फिल्म बनानी पड़ी। अब इतनी क्लासिक फिल्म की जिसमें इस फिल्म के किरदार का नाम अंत तक नहीं पता लगता। एक गांव से ट्रेन में बैठ करके 2 किरदार आ रहे हैं, अनु कपूर और अमिताभ बच्चन, और दोनों के पास खाने को कुछ नहीं है। और घंटों की चुप्पी के बाद अमिताभ का डायलॉग है कि वो कहता है कि एक बात तो है। बहुत मतलब तड़प के साथ पूछता है कि क्या, कि इतनी चुप्पी के बाद भूख के मारे मुझसे आवाज नहीं निकल रही। और उसके बाद वो बोलता है कि ठंड तो है। मतलब दर्द, ठंड, भूख और ऊपर से जो मालगाड़ी में बैठ करके जो हवाएं आपको भेद रही हैं, मतलब वो जो चरित्र है वो अपने आप में है। और उस चरित्र के अंदर से एक नायक पैदा करना, वो ऐसा नायक जो कि पूरे क्रांति ला देता है, जिसके पास खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं है, जो कि उसके अंदर एक सीन आता है जिसमें
खाया हुआ जो सेब है लोग फेंक देते हैं और उसकी नजर रहती है लोग हट जाएं तो सेब को मैं खा लूं, आधा खाया हुआ सेब, फेंका हुआ सेब। और उसी समय एक जिजीशा और कुछ यूथ आते हैं और उस समय जो अपनी बात किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो एक कॉमन मैन के अंदर से किस तरह से नायक आता है जो हमारी डेमोक्रेसी का प्राण है, ये फिल्म उस बात का प्रमाण है। अमिताभ बच्चन के शब्दों में उनकी शायद सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, उसको शायद उतनी सराहना नहीं मिल पाई। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप में से किसी ने ना देखी हो तो काइंडली इस फिल्म को देखें, ये बेहतरीन फिल्म है अमिताभ बच्चन की। और चौथी फिल्म जो आप ये देख रहे हैं, एक किरदार न्यूटन, ये डेमोक्रेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी आप ये कह सकते हैं कि एक किरदार जो कि एक सिंपल से एक इलेक्शन का एक एजेंट के तौर पे गया हुआ है, अधिकारी के तौर पे, चुनाव अधिकारी, वो वोट डलवाना चाहता है। लोग वोट डालते हैं और कुछ गिने चुने कुछ लोग हैं उनके नक्सल प्रभावित इलाके में किस तरह से डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहती है ऐसे अनाम लोगों के बीच, ऐसे अनाम लोगों की मदद से, उसका ये प्रमाण है न्यूटन जैसी फिल्म, क्लासिक फिल्म। और इस फिल्म ने बताया कि, और ये आप देख रहे हैं कि मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ये चरित्र कहाँ से उठे, ये चरित्र ये आम आदमियों के बीच से एक समाज के बीच में। और इसके बाद तो क्योंकि बाकी तो आप देखते ही हैं कि राजा रजवाड़े और उनके ऊपर फिल्म बनती है, बायोपिक्स बनती हैं, वो देयर आर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स, लेकिन ये आम लोगों के बीच से किस तरह से किरदार निकल रहे हैं और जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, चीजों को बदला। एक आदमी जिसका नाम नहीं था, एक आदमी जो इलेक्शन का क्लर्क की तरह था, एक आदमी जो गांव से आया और सिंपल रिक्शा खींच रहा था, और एक कवि है जिसको कि लोगों ने मुर्दा घोषित कर दिया कि साहब ये किसी काम का नहीं है, और मरने के बाद उसकी पूजा की जा रही है। ये चार लोग, चार किरदार है। और जिस पर हम बात कर सके, हमारा इंटरेक्शन हम लोग इसके बाद इस पे रखेंगे। आप लोगों की राय हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है कि ये जो किरदार है ये बहुत अहम है कि ब्लैक, व्हाइट और ग्रे तीनों तरह के किरदार चाहिए। और व्हाइट कई बार इस सेंस में कि वो आपको प्रेरणा देता है, ब्लैक जरूरी है, रावण के बिना राम का अस्तित्व नहीं, राम को सामने लेकर के आने के लिए रावण चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमको इंडस्ट्री में रावण को प्रमोट करना है, लेकिन समाज में जब तक दोनों ही चीजें किन किन कटु यथार्थों के बीच में उनके बरक्स चीजें खड़ी होती हैं, दैट मैटर्स। तो यहाँ पर ये जो अहमियत है कि वो ब्लैक की इम्पोर्टेंस है, वो उतनी ही अहमियत है कि व्हाइट। लेकिन ध्यान देना है कि हम महिमा मंडित कर देते हैं, और ब्लैक को महिमा मंडित नहीं करना है, उभारना क्या है, व्हाइट को उभारना है। तो ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, और उससे भी अहम आज के दिन ये हो गया है ग्रे, जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, जो आम आदमी है, जो हम और आप है, क्योंकि हमारे अपने अंदर एक आत्ममंथन चल रहा है। ये जो कल्चर है, दिस इज ऑल अबाउट द मंथन, या आप देखते हैं विचार मंथन होता है, समुद्र मंथन होता है, जो कि बिना मंथन के कुछ नहीं निकलता। तो ये जो ग्रे कैरेक्टर जिसके अपने अंदर ब्लैक और व्हाइट का स्ट्रगल चल रहा है, आज भी देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें हम लोग आराम से डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर निकल के कहाँ से आते हैं। ये कैरेक्टर अगर आप देखेंगे कि आज के दिन एक सुपरस्टार भी है, तो आपको देखेंगे कि वो उसने शायद उस किरदार को, उस समय की जरूरत को पहचान लिया और इसलिए वो अमर हो, इसीलिए वो शायद सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो। अगर मैं 4-5 किरदारों के बारे में संक्षेप से बात करूं, यानी कि लोगों ने अपनी जो ब्रांड बनाई है, लेकिन शायद उस समय की जरूरत को पूरा कर दिया, और लगातार एक नहीं, लगातार फिल्मों में वो वैसा किरदार करते चले गए, और उसकी वजह से वो स्टेब्लिश हो गए। वो एक नहीं, वो एन नंबर ऑफ द सीरीज। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, मान लीजिए आप राज कपूर को लेते हैं, एक सोशलिज्म का एक बयार चल रही है, और लेकिन कटु यथार्थ बहुत बुरे हैं, और उन कटु यथार्थ के बीच में लेकिन हमारे सामने उम्मीद है। और उस समय राज कपूर अपने आप को कॉमन मैन के तौर पे लेकर के आते हैं, और वो गाना जो चलता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगर आप ये देखें, ये जो किरदार है, और यही एक फिल्म में नहीं, सेम इसी तरह का श्री मेरा नाम जोकर देखिए, श्री 420 देखिए, लगातार 1-2 फिल्मों को छोड़ दीजिए तो अधिकतर किरदार में जो ट्रेड्स हैं कैरेक्टर की, वो लगातार एक ही किस्म के किरदार वो करते रहे। आम आदमी जो कि हंसता है, खिलंदड़ है, बदहाल है, खस्ता हाल है, वो, और उस यानी ये उस दौर
के आम भारतीय को प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जिसके पास केवल एक कर्ज है, लेकिन साथ में क्या है, सपना है। तो नेहरू के समय में वो जो एक बड़ी क्लास थी जिसके पास कि हम आजाद हो गए हैं, बड़ी चीज है। और ये जो उस दौर का सिनेमा था ये उसको प्रतिनिधित्व कर रहा, तो लगातार चरित्र जो है वहां से है। तो सिनेमा ने अगर उस तरह के चरित्र अगर आप उठा रहे हैं, उस तरह के चरित्र को समझ रहे हैं और उसको आप पर्दे पर उतार रहे हैं, तो आप लगातार सक्सेस हासिल। उसी में एक दूसरा ट्रेट हो जा रहा है कि उसी वक्त में जो उसको लग रहा है कि नहीं, वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, उसको वो डिसइल्यूजन और उसको थोड़ा सा आगे देख रहा है, उसको लग रहा है कि पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ है, ऐसा चलेगा नहीं। और वो फिर बोलता है कि वो गुरुदत्त उस चीज को पकड़ते हैं। तो गुरुदत्त उस चीज को पकड़ते हैं, तो वो उनकी फिल्मों में वो दुख है, वो पीड़ा है। अब आप कहें कि सपना इंपॉर्टेंट है कि पीड़ा इंपॉर्टेंट, शायद दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये करुणा भी एक यथार्थ है। कई बार अगर आप वास्तविक होकर के आंखें बंद कर लेते हैं, ऊंट की तरह से आंखें बंद करके आप बालू में डाल देते हैं, तो आप सत्य नहीं देख पा रहे, तो शायद आपको चीजें समझ नहीं है। तो शायद दोनों ही चीजों की जरूरत थी। उस दौर में एक तरफ गुरुदत्त खड़े हैं और दूसरी तरफ राज कपूर खड़े हैं। वो यथार्थवादी होते हुए थोड़े आशावादी हैं और वो बता रहे हैं कि ये जो कटु यथार्थ है, जिसकी तरफ से आप आंखें बंद किए हुए हैं, वो आज नहीं तो कल ये चीजें टूटती चली जाएंगी। और तब जब वो साहब बीबी और गुलाम में जो व्यवस्था के टूटने के प्रतीक में महल को गिराते हैं, क्लासिक है ना, किस तरह से एक 3 कैरेक्टर साहब बीबी और गुलाम डेवलप होते हैं कि किस तरह से एक, तो ये चरित्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आप चरित्र गढ़ रहे हैं। और ये चरित्र आपको किसी अखबार के पन्ने में आपको मिल जाएगा, आपके पास हो सकता है एक लाइन में मिल जाए, हो सकता है आपके घर का नौकर हो, आपके घर का ड्राइवर हो, आपको मिल जाता है। अभी हम लोगों ने कहा कि लगातार जर्नलिस्ट के ऊपर कितने भी, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की, कि अगर एक लगातार अगर आप देखो कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से लगातार जर्नलिस्ट को अलग अलग तरह से पोर्ट्रेट किया, जो जिस डॉक्यूमेंट्री की मैं बात कर रहा था, जगलर जोकर एंड जांबाज, कि किस तरह से केवल जर्नलिस्ट एक समय में जहां मशाल में वही चरित्र ताकत का प्रतीक है, और वो आते आते पान सिंह तोमर के अंदर वो लिजलिजा सा कैरेक्टर हो जाता है जब वो इंटरव्यू लेता है और वो कहता है कि साहब आप डकैत कैसे बने, और तालियां बजती हैं उसके ऊपर, वो लिजलिजा सा कैरेक्टर जर्नलिस्ट बन जाता है। ये जो दौर है, ये आर्क जो डेवलप हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि आप चरित्र उठाते कहां से। अगर आपने परफेक्ट चरित्र उठा लिया तो आप समझिए आपने आधी जंग जीत ली। ये चरित्र बड़ी अहम चीज है कि वो आप लोगों को अपने जैसा लगना भी चाहिए, अपनी बात कहता हुआ नजर भी आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग मान के चले कि ये तो एकदम सामान्य है, इसमें कुछ कहने वाली। तो विशिष्ट और सामान्य दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी चुनौती है कि रुचि भी हो और आप जैसा भी। तो ये जो रास्ता है, इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा कैसे। और इसको देखें तो इसकी ये जो चरित्र है, ये आपके पास आते कहां से, इनकी रूट्स जो है मैथोलॉजी में छिपी हुई है। क्योंकि हमारी जो सोशल वैल्यूज, हमको मालूम है कि फाइनली एक आदमी को करना क्या चाहिए। तो शायद हमारे समाज के अंदर आज भी चीजें हमारे मन के अंदर धसी हुई हैं कि बेटे को बाप पिता की बात माननी ही माननी चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। हो सकता मतलब उनकी इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए, उनके वचन की रक्षा करनी चाहिए, उनकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, ये चीज है। दो भाइयों के बीच में रिश्ता क्या होना चाहिए, ये चीज डिफाइंड है। और इसलिए शायद आज भी हम नकारते कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की, तो भी कहीं हमारा दर्द छिपा रहता है कि देखिए साहब, भाई ऐसे होते थे, हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज धसी। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये जो मिथ है, ये बहुत मैटर है। और इसीलिए इन मिथ पर हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से कैम्पबेल से लेकर बाकी लोगों ने काम किया है पूरी दुनिया में, मिथ कितने इंपॉर्टेंट है, कितने। अगर आपके पास टाइम होगी तो मैं कैम्पबेल का पूरा चक्र बाद में प्रेजेंटेशन से अलग दिया है, दैट विल टेक अ बिट टाइम, लेकिन अगर समय रहेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि 17 चरणों में कैसे कैम्पबेल ने बात की कि हीरो की जर्नी कैसी होती है, उस पर हम बात करेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मौका पड़ेगा। नाउ ये जो सामाजिक मनोविज्ञान, रूट्स इन द मैथोलॉजीज पर हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। रिसाइड्स इन सोशल, ये जो कैरेक्टर है कहाँ रहते हैं, ये हमारे सोशल साइकी में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर उनके बारे में बात करें तो सोशल साइकी जरूरी नहीं कि हम बात करें कि उस दौर की ही बात करें कि जब नेहरू का दौर था,
आज भी देखिए जब शाहरुख खान आए या क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं शाहरुख, क्यों सलमान खान सक्सेसफुल हो जाता है, सिक्स पैक्स और ये सारी चीजें अपने क्या वो, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार आपने देखी कि अगर आप बारीकी के साथ देखें, इस पर डिटेल कभी बात की जा सकती है, लेकिन अगर आप इस चीज को गंभीरता के साथ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कैरेक्टर जो कि फाल्टर करता है, मुंह से ही नहीं, उसका हकलाना, उसके बोलने का हकलाना नहीं है, उसके चरित्र का हकलाना, कैरेक्टर का हकलाना है। जैसे कि ऐसा आदमी आपने कहीं देखा था इससे पहले कोई हीरो जो चलते चलते खंबे से लड़के गिर जाता, क्योंकि वो गलतियां करता है, वो अपने प्रमोशन के लिए यस बॉस में समझौते कर लेता है, रिश्वत देने को तैयार हो जाता है, एक कदम और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको सफलता चाहिए, उसको चांद तारे तोड़ लाऊं उसके सपना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक निष्ठा है। ये आम आदमी की जो सामान्य आदमी की जो बात, ये देखिए लगातार वही कड़ी, जस बॉस वही करेक्टर, कभी आया कभी ना वही, एक एक प्यार हासिल करने के लिए वो सारे फ्रॉड्स करने को तैयार है, धोखा देता है, सारी चीजें करने को तैयार है, अपने दोस्त को झूठा बता दे, लेकिन एट द एंड जब उसको समझ में आता है तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके अंदर वो इंसान बचा होता, उस समय भी वो कांपता है, आसान नहीं होता। तो ये जो कांपना है, वो जो हकलाना है, ये जो आंतरिक संघर्ष है, वो अगर एक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करने लगता है और लगातार वो वैसी फिल्म पिक करता चला जाता है, अपने फिल्म में वो वैसा ही रोल अदा करता है, तो अब आप देखिए कि मिसाल के तौर पे कि सलमान खान को देखिए, सलमान खान लगातार फिल्म कर रहे थे, एक अलग तरह से लवर बॉय की इमेज थी, फिर उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में भी की, लेकिन लगातार फ्लॉप होती चली। व्हाट हैपेंड विद ऐश्वर्या राय, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन एट लेंथ ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, लेकिन उसके बाद जो उनकी फिल्में आई, उसमें हर फिल्म के अंदर क्या हुआ, इस नायक के साथ लगातार एक दुखांत नायक के रूप में इनकी इमेज प्रेजेंट, पूरी ब्रांडिंग भी सलमान खान ने उसी तरह अपनी, है ना, कि नाउ ही पहले क्या था कि एक रोग बॉय से लेकर के राइट नाउ ही इज बीइंग रिफ्लेक्टेड लाइक व्हाट, कि एक बीइंग ह्यूमन की इमेज, जिसके साथ बुरा होता है। अगर लगातार एक पीढ़ी देखे तो उसमें लगातार इनके साथ दुखांत, एक ऐसा नायक जिसके जो जो ट्रेजेडी जिसके साथ जुड़ गई, और जो वास्तविक जिंदगी का जो वो उन्होंने वहां पर पर्दे पर डाला और वो सक्सेस हासिल करा। तो ये जो कैरेक्टर आप कहाँ से उठा रहे हो, हमारे समाज में सारी चीजें, कौन सा कैरेक्टर किस किरदार के साथ जोड़ेंगे, किसको कौन परफॉर्म ऐसा करेगा, लेकिन वो कैरेक्टर समाज के अंदर से उठाना, उसके साथ जोड़ना बहुत है। और आज के दिन तो आप देखते हैं कि एन नंबर्स ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप गैंग्स ऑफ वासेपुर उठा के देखते हैं, चाहे बायोपिक्स कि आज के दिन तो बायोपिक्स का दौर है, और बायोपिक्स के दौर क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कल हमको लगता है कि एक समय में, क्योंकि जैसे बच्चे हैं वैसे हम भी हैं, बच्चों को जैसे आज के दिन परियों की कहानी सुनाई तो उनको समझ में नहीं आता, उनको नहीं लगता कि परियों की कोई परी होती, उनको मजा ही नहीं आ रहा कि परी थी, आएगी छुएगी, 7 घोड़ों पे राजकुमार आएगा, ऐसी शायद कोई छोटी बच्चियां सपने नहीं देख पाती, ये अपने आप में एक ट्रेजेडी हो सकती है, वो अलग विषय है, लेकिन नहीं देख पा रहे। उसी तरह से हम लोग भी शायद एक इस दौर में आ गए कि हमको एक गढ़ा हुआ कैरेक्टर शायद पसंद नहीं आ रहा कुछ हद तक, इसीलिए हमने नए अपनी असली जिंदगी से किरदार लेकर के आए, भाग मिल्खा भाग उठा करके ले, और उनके अंदर हमने वो मानवीय चीज लेकर के भाव लेकर के आए, क्योंकि अभी तक वो सूचना थी, अभी तक, अब उसके अंदर हमने प्राण डाले बायोपिक बना कर। तो ये कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने आप में कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, इस पे डिफरेंट सेशंस लिए जा सकते हैं। तो अभी हम इतना करके आगे बढ़ते हैं, इफ यू विल हैव द टाइम वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन द क्वेश्चन सेक्शन। I'll get to the next. अब मैंने जहां तो जो बात कही थी कि ये जो मिथ है, माइथोलॉजीज है, जोसेफ कैम्पबेल में व्यक्ति, अगर आप कुछ किताबें देखें तो जोसेफ कैम्पबेल ने हीरो विद 1000 फेसेस जैसी किताबें लिखी, और मोनोमिथ करके एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, और बताया कि एक नायक जो है उसकी एक जर्नी है, यात्रा है, और वो जो है हम माइथोलॉजीज के सहारा से, हम ही नहीं पूरी दुनिया में माइथोलॉजीज के बेस पर काम, और ये जो माइथोलॉजीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और उसने कहा कि ये जो सारी माइथोलॉजी पूरी दुनिया की, उसने माइथोलॉजी इतनी संभव हो सकती थी, उसने भारत से काफी प्रभावित रहा,
इजिप्ट में गया, पूरी दुनिया की उसने यात्राएं की, और इन माइथोलॉजीज में यानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके जरिए उसने उन कथाओं को देखा और कहा कि जो आज का नायक भी जो उसी से प्रेरित। और इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आपको पता है कि अरिस्टोटल से लेकर के आज तक ट्रेजिक एंड बहुत जो है लैटिन अमेरिकन कल्चर जो है या ग्रीक लिटरेचर जो है वो दुखांत ज्यादा है, भारत में भी रहा, लेकिन दुखांत के बजाय वहां पे करुणा से जुड़ा थोड़ा सा उसका डिफरेंट शेड है, वो दुख से अलग हट करके पैशन और प्रेम और उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी की होप रहती है, वो करुणा एक अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो रामायण जैसी कृतियां हैं वो करुणा करुण है ना, उसमें कहा गया कि एक और ऐसा करुण है जिसमें वाल्मीकि करुणा के बारे में बात करते हैं, दुख के बारे में विजय, वो एक्चुअली वो विजय काव्य के बजाय एक करुणा का काव्य है, जिसमें वो बताते हैं कि एक राजा को करना क्या क्या पड़ जाता है, एक राजा की अपनी यात्रा कितनी कठिन है कि उसके लिए अपने निजी जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरों के लिए प्रति न्याय कर रहा है तो उसके अपने निजी जीवन का जो भी आचरण होगा वो जनता निर्धारित करेगी। द रूल्स माइट बी द टफ, द रूल्स माइट बी द रॉन्ग, बट द किंग विल हैव टू डू दैट। ये जो चीजें हैं, और इसने क्या किया कि आपके यहाँ पर उस कैरेक्टर को आज भी स्टैब्लिश किया, और आप ये देखते हैं कि उसके लिए जो पर्सनल लाइफ का जो पीड़ा है वो आप देखेंगे डिफरेंट जगहों पर अलग अलग रूप में नजर आती है आज के किरदारों में। और इसी तरह से रामायण हो या महाभारत हो, महाभारत के एक चरित्र के ऊपर तो कहा गया है कि अपने आप में, अगर आप लोगों ने लिटरेचर देखा कि एक चरित्र के ऊपर अलग अलग से काव्य लिखे गए हैं, अलग से ग्रंथ लिखे गए हैं। राम कुमार भ्रमर एक बड़े लेखक हुए, उन्होंने महाभारत के डिफरेंट कैरेक्टर्स को, पूरी महाभारत उनके दृष्टिकोण से लिखी। और ये बात वहीं के नहीं, लगातार अगर आप देखते हैं कि आमिर खान जैसे जो फिल्मकार है वो भी कहते हैं कि हमारी जो कल्पना है वो क्या है कि एक महाभारत बना सके। तो ये जो महाभारत रचना है, क्योंकि एक ऐसी काल जिसमें अनगिनत पात्र है, और सारे कैरेक्टर जो हमने कहा था ग्रे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, उसके अंदर अपने अंदर से सबके संघर्ष चल रहा है। युधिष्ठिर के अंदर अपना संघर्ष है, भीम के अंदर अपना संघर्ष है, अर्जुन, द्रोण, दुर्योधन, सब कोई पात्र ऐसा नहीं जिसके अंदर वो संघर्ष नहीं है। और उस संघर्ष में वो अपनी दुनिया की यात्रा कैसे करें, अपने अपने धर्म का आचरण वो कैसे करें। धर्म का अर्थ वहां सीमित नहीं, जो उनको धारण करना चाहिए, जो उनको स्वीकार करना चाहिए, वो धर्म करें। और वहां पर गिरीश ये जो फिल्मकार है एक एक पात्र किस तरह से रूप अदा करते, और कैरेक्टर देखते हैं कि वेद व्यास लिखते हैं तो उसमें स्वयं पात्र बन जाते हैं, और कहते हैं कि एक जगह कहते हैं कि मैं दोनों हाथें उठा के कहता हूँ कि मेरी बात मान लो, लेकिन कोई नहीं। तो वो यानी उनकी दोनों ही संतानें हैं, और वहां उसके बाद भी अपनी पीढ़ी को तबाह होते हुए देखना, जानते हैं हुए भी कि किसी तरह से शायद शांति हो जाए, लेकिन शांति की स्थिति आती कि शांति संभव नहीं। वहां ईश्वर तक को जिस दुनिया में पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती, ऐसा कैरेक्टर जहां ईश्वर को भी श्राप मिल जाए। इट्स अ मार्वलस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, जहां वो कहता है कि कल की, लेकिन क्या है, ईश्वर भी कल की उम्मीद के लिए शायद ईश्वर को भी श्राप पाता है। कल की उम्मीद क्या है कि परीक्षित का जो बेटा है वो शायद बच जाए, उस बेटे की रक्षा के लिए उनको वो संघर्ष करते हैं और अपने वंश के नाश का श्राप देते हैं। ईश्वर को भी श्राप कहां से, मतलब ये इमेजिनेशन की जिसे कह सकते हैं पराकाष्ठा। और इमेजिनेशन को मान के चलिए कि इमेजिनेशन की को डिफाइन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है कि इमेजिनेशन का मतलब झूठ नहीं होता। कई बार हम लोग सोचते हैं इमेजिनेशन माने कुछ भी सोचिए, इमेजिनेशन माने कि जो शायद संभव हो सकता था, शायद सत्य से ज्यादा चीज कल्पना अहम है, क्योंकि साकार होने का जो भविष्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, कल्पना से जुड़ा है। कि आने वाले कल का सच क्या होगा वो शायद कल्पना तय करेगी, आज का सच। तो आज की सच से भी शायद अहम क्या होता है, कल्पना होती है, वो इमेजिनेशन होता है। तो ये चीज इस दृष्टि से बहुत अहम है। और मैंने कुछ नाम दिए कि गिरीश कर्नाड, अंजुम राजावली, नेवर टेक दैट दिस, डोंट कंसीडर दिस पर्टिकुलर एपिक्स लाइक ओनली एज अ रिलीजियस बुक। धर्म के तरह से पढ़ते हैं एक अलग बात, लेकिन उनको एक साहित्यिक कृति के तौर पर भी पढ़ना चाहिए, एक सामाजिक दस्तावेज के तौर पर पढ़ना चाहिए। गिरीश कर्नाड, अंजुम राजावली इसके एग्जाम्पल है। गिरीश कर्नाड का हयवदन से लेकर उन्होंने जितनी चीजें लिखी वो अधिकतर वो महाभारत की प्रेरणा से उनके काव्यों के ऊपर लिखा। अनडाउटेडली उनके इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन उस काव्य के ऊपर उसको महत्व देना ये है
तो नहीं हम ये सोच रहे हैं कि दूसरी विचार मतलब एक अगर सीधे शब्दों में कहें कि वामपंथी विचारक होते हुए भी वो धर्म ग्रंथों के महत्व को समझ रहे हों कि उन्होंने सामाजिक चीजों को किस तरह से जोड़ा, उनका महत्व कितना है, भाषा का महत्व कितना है, उनकी सामाजिक उन चरित्रों का महत्व कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निवर्षा जैसी जो फिल्म बनी इनके ऊपर बनी, तो you may interpret, you may vary as far as the opinions are concerned. There is no problem in that. डेमोक्रेसी के अंदर आपके अंदर ये विरोधी विचार होने ही चाहिए, हर तरह की राय होनी चाहिए। मैं स्वयं भी उनके विचार से हो सकता है सहमत हूँ, लेकिन महत्व कैसे देना है। इसी तरह से अंजुम राजावली को देखें, अंजुम राजावली ने राजनीति जैसी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, रोकाल जैसी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। अब धर्म का विषय आप जानते हैं, धर्म से नहीं, लेकिन विचारधारा से नहीं है, लेकिन वो अपने घोषित रूप से कहते हैं कि मैंने आज तक एक फिल्म ऐसी नहीं बनी, एक कैरेक्टर ऐसा नहीं गढ़ा जो कि महाभारत या रामायण से स्क्रिप्ट से न उठाया गया हो। घोषित रूप से उनके हर सेशन का एक हिस्सा रहता है। आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम और सार्वजनिक रूप से वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि रामायण और महाभारत के पात्र हमारे लिए जरूरी, हम अपना हर किरदार वहीं से उठाते हैं। राजनीति में तो क्लियरली दिया गया, लेकिन इवन चाहे द्रोकाल ये फिल्में अपने आप में देखने वाली हैं, और even if you have to counter from the different perspective, you must work on that. तो next slide. Now the next जो इशू है वो कन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर के पास से उतना ही अहम विषय है कन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष। यानी चरित्र आपने उठाया, चरित्र सामान्य हो सकता है, चरित्र विशिष्ट हो सकता है, चरित्र ग्रे हो सकता है, चरित्र ब्लैक हो सकता है, चरित्र व्हाइट हो सकता है, चरित्र काल्पनिक हो सकता है, चरित्र यथार्थ हो सकता है, अलग बात होगी। लेकिन वो चरित्र के सामने संघर्ष कैसे आया? अगर चरित्र का संघर्ष से साबका होता है, उसके साथ मुकाबला होता है, तभी उसके अंदर बेहतरीन रूप में वो चीज आएगी। इसको इस तरह से देखिए कि अगर हम कहें कि राम को दशरथ राजा बनाना चाहते थे और बन गए, रामायण कैसे लिखी जाए? अचानक आपको पता चलता है कि महाभारत आप लिख रहे थे और महाभारत लिखते लिखते पता चला कि धृतराष्ट्र को पता चला कि भाई आज मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक हालत में हैं, उन्होंने बुलाया और उनको राजपाट दे दिया अच्छे से, और उनके चचेरे भाई बिल्कुल राजी हो गए, यहाँ बिल्कुल उनको मिलना ही चाहिए। कैसे लिखी जाती महाभारत? तो ये कन्फ्लिक्ट के बिना कुछ है ही नहीं। आपकी जिंदगी में भी आपने जो भी हासिल किया वो कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट चाहे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो चाहे एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो, यानी संघर्ष जब आता है तभी चरित्र विकसित होता है। संघर्ष के बिना कोई चरित्र को विकसित होने की कोई संभावना नहीं। संघर्ष ही, अब वो संघर्ष समाज के साथ हो, वो संघर्ष आपके अपने अंदर हो, वो संघर्ष अपने आर्थिक हालात से हो, वो संघर्ष अपने सामाजिक हालात से हो, लेकिन आपके अंदर का सबसे बेहतरीन व्यक्ति संघर्ष के बाद ही सामने। इसी तरह से फिल्म का कैरेक्टर, अगर आप देखो टेड टॉक से लेके जा रहे हो तो मतलब आर्टिफिशियली वो निकल के साहब एक कैरेक्टर लीजिए, 5 प्रॉब्लम्स है तो 5 और डाल दीजिए, तो क्या होगा? कैरेक्टर खिल जाएगा। I would not suggest artificially that, but feel that actually what happens with it. और जब वो स्ट्रगल आता है तो वो उसके अंदर एक इंसान होता है जो लड़ता है, जगता है ना, घिसता है, उसके पसीने बहते हैं, उसके खून निकल सकता है, और तब वो खिलता है। तो कैरेक्टर के लिए कन्फ्लिक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि कैरेक्टर जब कन्फ्लिक्ट के साथ मैच करता है, कन्फ्लिक्ट के साथ लड़ता है, तब बहुत अहम होता है, तभी वो चीजें सामने आती है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जैसे कहा कि आपकी जिंदगी में ऐसे हर कैरेक्टर, अब इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि सिंपल व्यक्ति जो है उसके लिए एकदम कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन याद है। एक है ना जो गोल्डन रूल का कि अचानक एक राजा है और उसको अगले दिन क्या होता है, वो उसको जंगल जाना पड़ता है राजपाट के दिन। एक चल रहा था, है ना, वो राजा बन रहा था, उसके बाद उनके टीचर उन्होंने कहा ऐसा चलो कुछ दिन तक आउटिंग के तौर पे कहाँ चलते, जंगल चलते। वो उसको लग रहा है कि एकदम डेलिकेट, मतलब बेटे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, 4 बेटे हुए, और जो सबसे 2 प्यारे बेटे थे उनको जंगल में जानवरों से लड़ने, वो राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा साहब हम सेना भेजे, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए, हमको ये 2 कैरेक्टर चाहिए। पहला झटका लग रहा है।
फिर दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, फिर उन्होंने कहा कि साहब लौट करके किसी तरीके से आ रहे हैं, आगे अब राजा बनाएंगे, अब राजा बनाएंगे, नहीं नहीं आपको सब जंगल जाना। जंगल जाते हैं, लगा अब ठीक है सब कुछ चल रहा है, कुछ कम समय तक रहते हैं, अचानक फिर कंफ्लिक्ट क्या होता है कि एक राक्षस आता उठा करके ले जाता है। अब वहां पर जा रहे हैं, उनके पास कोई लोग नहीं है, किसी से सपोर्ट नहीं ले सकते, ठीक है, बंदर भालू मिलते हैं, उनको उनका सपोर्ट लेते हैं और सामने जाते हैं कि पूरी दुनिया के साथ ऐसी ताकत जिसने देवताओं तक को बंदी बना रखा है, सामने डोंट। यहाँ पे जब हम बात करें, अभी ध्यान रखिए कि वाल्मीकि रामायण ने राम की कल्पना एक ऐसे इंसान के तौर पे जिसके ऊपर देवत्व जो वो हासिल करता है, मतलब भगवान की छवि है, वो इसको मतलब मानवीय छवि के साथ ईश्वर, मैं निश्चित रूप से वो ईश्वर है, अलग अलग विषय है, लेकिन साहित्य के तौर पे किस तरह से वो संघर्ष को लेकर के वो जो ईश्वर, क्योंकि अगर ईश्वर है तो उन्होंने मानवीय रूप में लिया और बिल्कुल इंसान की तरह से उस दर्द को सामने किया। और वहां पे डिफरेंट कैरेक्टर, सीता भी आपको देखेंगे कि अमीश आज लिख रहे हैं, लेकिन शायद वाल्मीकि रामायण में भी वहां पे सीधे बात आती है कि सीता पूछती है, प्रश्न करती है कि साहब हथियार लेके क्यों चल रहे हो, शी डिबेट्स। तो वहां पे वाल्मीकि रामायण की जो सीता है वो अलग है। इसी तरह दक्षिण के रामायण में भी कई जगह तो सीता वध करती है रावण। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो दोज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स, और उनके अंदर एक पावर है, और ये जितनी बार वो स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल है वो आप देखेंगे, अभी टाइम मिलेगा तो पीपीटी से अलग मैंने एक स्क्रीन अलग सेव करके रखी है कि उसके अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल कैम्पबेल ने जो पूरा चक्र बताया है वहाँ उसी तरह से सामान्य रूप से एक बातें होती हैं कि आज कहाँ पे आपको एक प्रीचर मिलता है, कहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है, कहाँ पे आप अपने आप वापस एक हिचक होती है, कैसे आप इंटरनल स्ट्रगल करते हैं, कैसे आप पहला कदम बढ़ाते हैं, कैसे आप दूसरी दुनिया, संघर्ष की दुनिया में प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे पूरा चक्र चलता है और उसके बाद वापस आप अपनी दुनिया में आपको लगेगा पूरी राम कथा चल रही। तो बेहद अहम है, इसको गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत। मैं कुछ वास्तव में मैं आपके सामने विचार के कुछ बिंदु दे रहा हूँ, आप लोग विद्वान लोग हैं, और विद्वानों के साथ में ये जो वास्तव में कहूँ ये मेरे क्या है कुछ मौका मिला वरिष्ठ लोगों के साथ का, और कुछ थोड़ा बहुत चिंतन है, वही चीजें साझा कर रहा हूँ। उनमें से कुछ चीजें आपके मतलब की तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आपकी विद्वत्ता और आपके ज्ञान के सामने हो सकता है कल कोई सेशन चल रहा हो तो मैं आपका सेशन अटेंड करूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नो, अगर अभी देखें तो ये संघर्ष कहाँ से आता है, इसमें हम कुछ बातें कर रहे हैं, और ये संघर्ष बड़ा अहम है। मैंने जैसे कहा कि अब हम कल्पना करते हैं कि हम अमेरिका की कल्पना करते हैं कि साहब वो पूरी दुनिया पे उसने दादागिरी की, और पूरी आज की बात है, आज तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, दुनिया का दादा बन चुका, कोल्ड वॉर भी समझिए रशिया को भी उसने तोड़ दिया, और आज वो दुनिया की सब बड़ी ताकत। अब वो क्या कर रहा है, अब वो उसको पूरी यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, अब अमेरिका को लेकिन फिल्म बनानी तो क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए। अब प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, रूस ताकत देने वाली स्थिति बचाने या कंसीडर नहीं कर रहा, वो कह रहा है सब कहाँ से हम लेकर आएंगे कि हम उसके सामने प्रतिरोध कहाँ से आ रहा है, संघर्ष कहाँ से आ रहा है, वो डायनासोर से, यानी 5,000 साल वो हजारों साल पीछे चला जा रहा है, और वहां से जा करके वो डायनासोर उठा ला रहा है और उससे लड़ रहा है। उसको प्रॉब्लम कहाँ से चाहिए, उसको स्ट्रगल कहाँ से चाहिए, उसको कंफ्लिक्ट कहाँ से चाहिए, पास्ट से ले आ रहा है। उसको स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ जमीन पे संघर्ष नहीं मिला तो क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है, कहाँ से, आसमान से स्टार वार्स और नहीं समझ में आ रहा तो जमीन की गहराई में चला जा रहा है, और वहां से ज्योग्राफिकली उसको क्या वॉल्केनो फट जा रहा है, इतिहास में चला जा रहा है, वहां से उसको मम्मी से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि आप बात ये आर्टिफिशियल संघर्ष नहीं, क्योंकि ये संघर्ष इंपॉर्टेंट नहीं, हर उस संघर्ष के साथ वो कैरेक्टर खेलता है। वो कैरेक्टर के अंदर आप देखते हैं कि जब वो स्ट्रगल करता है तो वो आपको वो चेहरा, उस चेहरे के बीच में अगर बड़ा आर्टिफिशियली होता चला है, सबको हजारों की तरह से मोबाइल गेम की तरह से सबको सैकड़ों लोगों को मारता वो चलता चला है, तो आपको शायद उतना मजा नहीं आएगा। मोबाइल गेम में भी खतरा रहता है कि खुद भी मरने का, तब जाकर के अच्छा लगता है। अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए कि गन की तरह कि तुम ही चलाओ, तो कोई दम नहीं, कोई मजा नहीं। तो जब तक एक अनिश्चितता है, जब तक की संघर्ष है, तब तक ही खूबसूरती है। तो ये जो संघर्ष है वो बहुत अहम है कि ये जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो आप देख, जैसे मैंने बात की जुरासिक पार्क और मम्मी से आ रहा है,
प्रेजेंट में आज अगर जब तक ये था कि कोल्ड वार चल रही थी, तो जेम्स बॉन्ड सीरीज की चीज चल रही कि साहब वो गए और वो कभी केजीबी से लड़ाई चल रही है, उनके साथ लड़के चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स फॉर स्काई की मैंने बात की। फिजिक्स में भी देखा कि सब कुछ नहीं तो फिजिक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सब ग्रेविटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है। और हिस्ट्री के अंदर से आपने कहा कुछ नहीं तो आप देखते हो कि उस दौर में क्या हुआ होगा, हिटलर के दौर में क्या हुआ होगा, वहां क्या हुआ होगा, और अब वहां से लेकर के आते हैं क्योंकि आप आम आदमी के उस संघर्ष को प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि जब जब समस्याएं आई हैं तो आप देखते हैं कि ये सारी चीजें हटा दीजिए और आप ये देखिए कि सबसे सुखद पीरियड जो है उन पर हम मतलब करें तो कुछ समझ में नहीं आए, बिल्कुल कुछ लिखने को नहीं मिलेगा कि करेंगे क्या, बनाएंगे क्या। आपको देखेंगे वो उस दौर का राजा सबसे बेकार राजा रहा होगा, उसको याद भी शायद नहीं करना चाहिए। तो जो स्ट्रगल है जिसको हम लग रहे हैं कि ये शायद इसलिए नहीं कोई राजा कोई किंग या आम जनता तब बड़ी नहीं होती जब उसको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। शायद जनता तब बड़ी होती है, राजा तब बड़ा होता है जब उसने वास्तव में उस संघर्ष को जिया होता है और उस संघर्ष के बाद सफलता हासिल होती है। हाँ, नेक्स्ट। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, कुछ किताबों के बारे में भी हमको बात करनी है कि अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु जिसे कहते हैं क्या, वो बोलते थे कि साहब तीन, हर कड़ी जो होती है पूरी दुनिया की हर कहानी क्या है वो तीन चीजों की जुड़ी है, बिगिनिंग मिडिल एंड। अब ऐसा नहीं है कि हम आपके देश में किसी ने बात कही नहीं, लेकिन अधिकतर जो किताबें हैं, जो चीजें, जो ग्रामर चली आ रही है वो क्या है, वेस्टर्न ग्रामर है। इसीलिए बार बार इस चीज में महत्व हो रहा है कि कैम्पबेल ने जो काम किया वो जरूरत है कि इंडिया में शायद कहा जाने का, अपने लिटरेचर को, अपनी चीजों को पढ़े जाने उसकी जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज कहीं से भी मिले उनका स्वागत होना चाहिए। साथ साथ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, हर किरदार जो है वो तीन, हर कहानी जो है उसके अंदर तीन हिस्से हैं, एक शुरुआत का, एक मध्य का और एक अंत का। शुरुआत, मध्य और अंत ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको इस तरह से देखें कि शुरुआत माने कि जब आपके पास, क्योंकि अभी आप क्या करते हो कि पूरे टाइम स्पेन से एक आदमी जैसे 60 साल की जिंदगी जी है मिनिमम, उसके ऊपर आप एक फिल्म बना रहे हो, तो उसमें उस कैरेक्टर को तो आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, 2.5 घंटे के अंदर आपको फिल्म लेकर के आनी है, कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस करो, तो उसकी शुरुआत आप कहाँ से करो, तो कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस करोगे कहीं। तो ये जो बिगिनिंग है उसमें किस तरह से हर किरदार अपनी खूबी के साथ सामने आता है, क्योंकि आपके पास एक फ्रेम मिल रहा है और वो आपको लिखना है, दैट यू विल हैव टू राइट, कैरेक्टर आपको लिखना है। तो वो कैरेक्टर आपको किस सीन के साथ, बिगिनिंग आप कैसे कर रहे हो कि किस हालात का व्यक्ति है, उसके अंदर किस क्या खूबी है, वो चीज जो है हर कैरेक्टर को बताना, खासतौर से जो प्रोटैगनिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना, ये क्या है, बिगिनिंग का। और बिगिनिंग में जहां तक आते आते कि इस बिगिनिंग के अंदर जो दूसरी जो प्रॉब्लम की झलक मिलनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये मिडिल है, ये जो संघर्ष का समय जिसके बारे में था, मिडिल जो है वो संघर्ष, जितना अच्छा संघर्ष उतना अच्छी फिल्म, उतनी अच्छी चीज। अच्छे संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियली, आप सब कुछ हो रहा है तो आप कह रहे कि कुछ नहीं हो, लौट के रहा था तो हीरो जीता तो अचानक गाड़ी पंचर होकर गिर गई, तो ये आर्टिफिशियल टाइप के संघर्ष के बारे में बात नहीं है। यहाँ संघर्ष का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो यथार्थ हो और जो उसके कैरेक्टर को खिलने के लिए मदद दे। और खिलने का मदद मैंने खिलने की प्रक्रिया में ध्यान दीजिए, लड़ने की प्रक्रिया में हीरो हर बार दौड़ता ही नहीं रहता, हीरो हर बार गिरता भी है, हीरो को चोट भी लगती है, हीरो कई बार गलत उल्टा भी सोचता है। तो हीरो क्योंकि मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर क्योंकि वो हो सकता है कि एक्सटर्नल स्ट्रगल के होते होते आपका इंटरनल स्ट्रगल हो जाएगी, इतनी चुनौतियां कैसे हैं, छोड़ यार, छोड़ते हैं ये सब, कहाँ इन कपड़ों में फंस गए, कुछ और अपना करते। अरे बाकी की तरह से हम भी अपनी शांति से जिंदगी जीते, क्या दिक्कत है, मिल तो रहा था राजपाल, ऐसा नहीं। वो जो स्ट्रगल है वो हो सकता है कि किसी एक, हाँ हेलो, एनी क्वेरी, वो बेहद अहम होता है। और लास्ट में जो आपका रिजोल्यूशन होता है, एंड की जो बारे में बात होती है, ये कैसा भी है, दुखांत सुखांत कैसा भी है, वो वहां पर आता है। और ये इस तरफ हम कैसे लेकर के आते हैं, इस चीज को और अच्छा डिफाइन किया गया है एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी को और एक्सप्लेन किया गया है, फ्रेटेक्स पिरामिड इसको कहते हैं। इसके अंदर भी यही चीज है, 3 एक्ट प्ले ही है, लेकिन और अच्छा इलेबोरेट किया गया है कि ये एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स
कॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन, ये 5 चरण। ये 5 चरणों में यहाँ से स्टार ला के इंसाइटिंग इंसिडेंट दिया है कि इंसाइटिंग इंसिडेंट इंट्रोड्यूस होता है तो पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो लेकिन ये 5 चरण है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, कॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। एक्सपोजिशन यानी जो बात मैंने आपसे कही, किसी का कहानी के अंदर जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो आपके जो किरदार हैं, पात्र हैं, वो किस सामाजिक पृष्ठभूमि में है, कहाँ रहते हैं, किस बंदे का किससे क्या रिलेशन है। और कुछ फिल्मों में देखा कि एक नरेटर बोल देता है, लेकिन नरेटर हर जगह फिल्म में नहीं बोलेगा, वहां भी बोलेगा तो कौन सा शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, क्या दिख रहा है सामने पर्दे पे, क्या दिख रहा है। तो वो चीज दिखाना, बताना कि उस किरदार का दूसरे किरदारों के साथ रिश्ता क्या है, उनकी आर्थिक हालात क्या है, सामाजिक हालात क्या है, सोचता कैसे है, दिखता कैसे है, कपड़े कैसे पहनता है, वो सारी चीजें निकलता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको कुछ चीजें, कई चीजें आपको स्टेरियोटाइप बनानी पड़ती है। आप सोचो कि गरीब आदमी है, दूसरे का क्या हो सकता है, उसको बाहर का कपड़ा मिलेगा नहीं, यहाँ उसको क्या चाहिए कि गरीब है तो उसको गरीब दिखना भी चाहिए। तो वो सारी चीजें आप उसको लेकर के आते हो, और यहाँ भी आपके सामने चैलेंज होगा, जैसे मैंने कहा कि वो आम जैसा भी दिखे, बार बार क्योंकि स्टीरियोटाइप हो सके उनसे कुछ अलग भी। तो आम और अलग, ये एक चैलेंज हमेशा रहता है। उसको आपको किरदार कैसे बनाना कि लोगों को के लिए रुचिकर भी हो और आम जिंदगी का पात्र हो। तो वो जो पात्र, सारे पात्रों को इंट्रोड्यूस करना, अधिकांश पात्रों को कम से कम उनको इंट्रोड्यूस करना। और यहाँ पे दूसरी जो बात आती है कि एक आपके सामने एक चैलेंज इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंट्रोड्यूस होता है कि समस्या है क्या, हल्का सा इलाके में कोई बदमाश है, अभी सामने सामने हो सकता है, भिड़ंत नहीं हुई है, लेकिन है, वो भी उसका मतलब संघर्ष की चुनौती का जो संकेत है उस एक्सपोजिशन के उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चीज एक्सपोजिशन करना, और साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन, हल्का सा इंट्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। देन द राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन यानी अब इसको इस तरह समझिए कि विपरीत हालात से का जो चरम है ना, अब जो चुनौती है उसके चरम तक पहुंचने के बीच में सीधे तो नहीं भिड़ गया होगा वो जाकर के, चलो आज जाकर के विलेन जाकर के निपट लेते हैं। वही अगर आप रामायण के, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कई बार हुआ ना कि प्रदूषण आया, सुपना का ए आया, बी आया, सी आया, फिर जाकर के वहां पे आया। तो वो जो चुनौती है ए से लेकर के क्लाइमैक्स की वाली जो सिचुएशन है कि अब तो बिल्कुल झगड़ा होना ही है। झगड़ा कहां तक होना है कि यानी यहाँ से लेकर के क्लाइमैक्स, यानी अगर हम यहाँ पे क्लाइमैक्स बोले तो अलग अलग लोग उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन मैं रामायण से अगर कम्प्लेक्स करूं तो सीता का हरण, कि नाउ कि अब कोई बात है नहीं है तो लड़ाई होनी। तो वो वहां तक आने का जो चरण है वो क्या है, वो क्लाइमैक्स। अब इस क्लाइमैक्स तक आने से पहले 2-3 घटनाएं घटेंगी, ए घटेगी, बी घटेगी, सी घटेगी। वो कहाँ तक पहुंच रहा है और किस तरह से आपको लग रहा है। हो सकता है किसी चरण में हीरो कहते हैं छोड़ो यार, मतलब हर चीज को आप राम कथा से नहीं जोड़ो। मान लीजिए कि आगे कहानी पे आपने लिखा पहली लड़ाई, उसने कहा नहीं यार घर में बैठते हैं, है ना, जैसे गर्दिश फिल्म देखी, उसने कहा घर में एक बंदा है वो बनना चाह रहा है पुलिस अधिकारी, उसने कहा घर में बैठो, पैसे से दे करके कुछ नौकरी हासिल करो, बात खत्म, तुम्हारी नौकरी भी नहीं पक्की। लेकिन उसको लग रहा है नहीं किया जा सकता, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये एक एक चरण, कई बार हारना, कई बार चुप हो जाना, फिर किसी का इंस्पिरेशन मिलना, ये सारी जो चीजें आती हैं, ये राइजिंग एक्शन में यहाँ से लेकर के क्लाइमेक्स तक हासिल करने के बीच में मुख्य चुनौती से के साथ जो चुनौती है वो वहां तक कैसे पहुंचते हैं। अब दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, इज द क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स को आप ऐसे समझें कि एक इसकी सखत सिचुएशन के साथ उसका सामना हो रहा है। अब 2 चीजें होंगी, या तो हीरो गिरेगा या हीरो उठेगा, या तो सुखांत होगा या तो दुखांत होगा, 2 ही चीजें। जितना आपको यूरोपियन लिटरेचर पढ़ेंगे मैक्सिमम क्या है, दुखांत। अब यानी ट्रेजेडी भी होती है, यानी ट्रेजेडी हो गई कि यानी उसके सामने कैंसर, मान लीजिए पेशेंट आ गया और उसके बाद पता चला कि बीमारी डिक्लेयर हुए, और या उसकी जो लवर उसने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ भी हुआ, तो या तो दुखांत अगर हो गया तो गिरता कैसे चला गया, और या हारता कैसे चला गया, ये कहानी हो सकती है, या जीतता कैसे चला गया। ये दोनों चीज संभावना है। अब जैसे मान लीजिए हम राम कथा के बारे में बात करें तो उसमें क्या, वो जीतता कैसे चले गए। तो अभी तक वो राजा उनकी सौम्य छवि है, राक्षसों को मारते हैं, इनको करते हैं, लेकिन फिर भी एक शांत छवि, जो वापस जा करके अपने फाइनल बात क्या है, चुपचाप जाना है, 14 साल काट करके सीधे अयोध्या लौट जाना, प्रेम भाव, लोगों से मिलना है, ऋषियों से मिलना है, थोड़ा बहुत संघर्ष हो रहे हैं, ठीक है, राइजिंग एक्शन की वजह से, लेकिन वहां तक सीमित।
क्लाइमेक्स कहाँ पे आता है कि जब आ गया कि सीता का हरण हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब तो स्ट्रगल है, अब जो होगा वो चुनौती होगी। तब राम ताकत दिखा रहे, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, पावर इकट्ठा कर रहे हैं, मोस्ट पावरफुल लोगों को उनके सामने कैरेक्टर्स उनके साथी बन रहे हैं, है ना, हनुमान के। वो जो कैरेक्टर्स है उसके बाद जो क्लाइमेक्स के बाद यानी वो सिचुएशन क्या आई कि क्लाइमेक्स ने वहां से लोगों को उठाना शुरू किया और इस जगह से अब आपके पास या तो एक स्थिति यहाँ पे आ गई कि यहाँ से राम का एक शक्ति वाला रूप जो है वो केंद्रित होना शुरू हुआ। या दूसरी अगर आप कल्पना करें, यूरोपियन लिटरेचर में आपको देखें कि ये घटना घट गई और उसके बाद बुरा होता चला, जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, मार दिया जाता है। उसके बाद कुछ सॉरी जस्ट अ सेकंड, उसके बाद क्या क्या होता है, एक बड़ा किरदार जो है सामने नजर आ रहा है, अचानक उसकी हत्या हो जाती है। देवदास में अगर आप देवदास को देखें तो देवदास में अलग हो जाता है और उसके बाद वो कैसे डिटेरियोरेट करता है, कैरेक्टर कैसे होता है ना, अलग हो गया, ईगो अपना ईगो है, सारी चीजें हैं, लेकिन देवदास और पारो का भी छो हो गया, अलग हो गया। उसके बाद कैरेक्टर क्या है, गिर रहा है। ये वेस्टर्न फॉर्म है, लेकिन लगातार आप देखते हैं उसके अंदर वो चीज कैसे आ रही है। और फिर मैंने कहा कि क्लाइमेक्स आपने समझा, कॉलिंग एक्शन भी आप समझ गए कि उसके बाद क्लाइमेक्स के बाद यानी वो जो घटना यानी चुनौती से साबका होने के बाद, या slide got missed, kindly come to that slide, hello, yeah, तो उस स्लाइड पर सॉरी यानी चुनौती का से मुकाबला करने के बाद आपकी प्रवृत्ति में क्या, आपकी जिंदगी में क्या क्या और घटित होता है वहां तक, और लास्ट में जो रिजोल्यूशन एंड यानी हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग जो भी कुछ होना है वो लास्ट में आपका रिजोल्यूशन है, ये क्या आखिरकार होता है आपके पास, आपके साथ होता है, ये बेहद अहम चीज है। डू वी हैव एनफ क्वेश्चंस, तो ये रिजोल्यूशन का मतलब अंत में जो उसकी परिणति निकलती है, यानी इसको कहा जाता है कि जो हीरो चाहता था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कहा जाता है जो हीरो डिजर्व करता था, यानी परिस्थितियां उसको किस तरफ ले जाने वाली थी, लेखक ने उसके लिए जो तय कर रखा था, जो उसकी जो नियति है वो उसका परिणाम हुआ, या दूसरे शब्दों में इसके लिए शब्द आता है कैरेक्टर आर्क, यानी जो कैरेक्टर पहले था और उससे वो वहां पे कहाँ पे आया। ये बेहद अहम चीज है ना कि आप देखते हैं, क्योंकि आपने फिल्में देखी कि एक कैरेक्टर जो था पहले किस रूप में था और आखिर तक किसी भी संघर्ष त्याग करके इसके बाद क्या निकल करके आया। ये जितना ज्यादा ये जिन हालात से होकर के ए से लेकर के सी तक, आर्क माने जो चाप आप लगाते हो, सर्किल हाफ सर्किल देखते हो, ए से बी पॉइंट तक आते हैं कि ए और बी में नजर आना चाहिए कुछ अंतर, ये बहुत अहम है। और ए और बी का अंतर खासतौर से ये स्ट्रगल फेज के एंड की बात है, उसको बहुत महत्व देना चाहिए कि उसमें कुछ एक खास अंतर होना चाहिए कि उसने अपने जीवन से कुछ सीखा, कुछ चीजें बदली, कुछ चीजें अंतर आया, हो सकता है उसकी जिंदगी तबाह हो गई, हो सकता है उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, हो सकता है उसने पब्लिक सिंपैथी गेन कर ली, है ना, हो सकता है कि वो मुकद्दर का सिकंदर बनते बनते उसने मतलब वो अभी तक वो मोटरसाइकिल चला रहा था और लास्ट में आकर के वो मुकद्दर का सिकंदर बन गया, वो ट्रेजिक एंड होने के बावजूद भी उसने प्यार की नई मिसाल लिख दी, एनीथिंग कुड बी। तो वो चीज जो है वो रिजोल्यूशन के अंतर्गत आएगी। How much time is left? If we are having enough questions, then I would like to have that. And if we are having the time and some students are interested, then I can discuss on one particular chart 2 of the Campbell's heroic journey. वो आपके साथ शेयर नहीं किया था, बट हाँ इससे पहले अगर मैं चाहूंगा कि हाँ ठीक है 2-3 मिनट ये भी है, पहले इसको देख लेते हैं एंड देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, सिंपली रेज द हैंड्स, सवाल कितने हैं उसके बेस पे तय कर लेते हैं। मैम आप बता सकते हो या एनी हेल्प जो मुझे बता सके कितने सवाल हैं? Near about 5 to 6 questions. Shall I? 5 to 6 questions. Okay. So first of all, I would like to entertain the question. पहले ये 2 मिनट की फिल्म, क्योंकि मैंने अभी आपके पास फिक्शन पे बात की है, मैं नॉन फिक्शन पे केवल 2-2.5 मिनट की एक छोटी सी फिल्म है, इसको देखिए
एंड क्योंकि कुछ सवाल अगर आप डॉक्यूमेंट्री और सीरियल्स पे भी मेरा कुछ काम है, अगर आप उस पर पूछना चाहेंगे देन आई विल लव टू आंसर दिस। तो इसको जरा प्ले कर लीजिए सर। वाला विद्यार्थी स्नान करता है ज्ञान की मोती जैसी बूंदों से, भावनाओं में भीगी स्मृतियों से। सपना एक युवा टीएमए पाई ने देखा था। आज से लगभग 100 साल पहले उस दौर में मेडिकल ग्रेजुएट होना अभेद्य किले को जीतने से कम न था। Thank you, ma'am. Thank you all. I would like to have the questions. So the first question is from Manisha Upadhyay. She wants you to throw light on the movie Door. Could not listen there. Yeah. She wants you to throw light on the movie Door. 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 Yeah. Right now थोड़ा दौर हो गया है। मैं ऑनेस्टली कहूँ कि इस समय मैं पूरी फिल्म को याद नहीं कर पा रहा हूँ। मनीषा जी, could you like to discuss a bit about that on what particular aspect? थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराइए। मनीषा जी, are you here? Manisha Upadhyay. Yes, sir. Yes, sir. On what particular aspect you are willing to discuss? एक्चुअली उसमें आयशा टकिया ने जो एक रोल किया है, तो वो एक राजस्थान की पृष्ठभूमि में किस तरीके से उसको सारा झेलना पड़ता है। तो आयशा टकिया एक हीरोइन ऐसी रही है जो थोड़ी मॉड दिखाई जाती है, बट उसमें एक अलग फ्लेवर में वो नजर आ रही है। तो क्या ऐसा इम्पैक्ट वो फिल्म के जरिए से डाल पाई है, मतलब क्या रोल में फिट है वो कैरेक्टर, और आयशा टकिया उसको शूट कर रही है कि नहीं कर रही? आयशा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैनी टाइम्स मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग फिल्म मेरी देखी हुई है, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का उस पर मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि व्हाट हैपेंस कि आप केवल आयशा टाकिया की बात देखें या किसी किरदार को किसी से बिल्कुल आप
अलग पृष्ठभूमि, क्योंकि जो शॉक एलिमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, मैं आलिया भट्ट का उदाहरण देना चाहूंगा, बिल्कुल सेम इसी कि महेश, उनके पिता भी कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने जो स्टूडेंट्स, क्या नाम था फिल्म का, उसमें जो किरदार किया, इससे पहले जो फिल्मों में वो बात कर रहे हैं ना, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अचानक उनको उड़दा पंजाब में दे दिया जाता है, जिसमें चेहरे पे आपको एक मेकअप की गुंजाइश नहीं रहती है, और वो आपके सामने एक ड्रग एडिक्ट के रूप में, एक रेप विक्टिम के तौर पे आपको पूरी फिल्म में दिखाना है एक अलग तरीके से, और बिल्कुल जिसे कह रहे पूरी फिल्म भर आपके चेहरे पे, लगभग आधे चेहरे पे कोयला पुता हुआ, धूल और वैसा, मैंने बहुत ही जिसे कहते हैं कि बदरूप चेहरा जिसे उस तरह से प्रस्तुत करना है। तो मैनी टाइम दैट सॉर्ट ऑफ द शॉक एलिमेंट मैटर्स अ लॉट। जब आप अपने किरदार को, दो चीजें होते हैं, लेकिन ये खतरे वाला भी है, क्योंकि अधिकतर जो फिल्में हैं, आयशा टाकिया अनडाउटेडली एक बड़ी किरदार रही और जिन्होंने शीशो कर दिया। आमतौर पे क्या होता है कि हीरो अपनी एक खास तौर पे ब्रांड इमेज प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सलमान खान ने खास तौर पे ब्रांड इमेज दी, शाहरुख खान ने ब्रांड इमेज प्रेजेंट की। अगर उनके अंदर वो एक्टर कितना जिंदा है, कितना वो उसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो परफॉर्म कर गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं किया तो डिजास्टर भी। तो आप अपनी जो कि मतलब स्क्रिप्ट अपनी जगह बात है, लेकिन जब आप, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि चाहे स्क्रिप्ट राइटर भी फाइनली जब कैरेक्टर को जो सेलेक्ट करना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि कौन इस रोल को प्ले करेगा। तो किस तरह से जब हम इस चीज को हम सामने लेकर के आते हैं एक खास किरदार के तौर पे, चाहे आपने जैसे राजस्थान के बारे में बात की, डिम्पल बस पोर्ट्रेड इन अ डिफरेंट लाइट, रुदाली से पहले तक सागर और न जाने किस तरह की उन्होंने कई तरह की फिल्में की, लेकिन जब रुदाली में बात कर रहे हैं तो सोचिए कैसा कैरेक्टर दिया जा रहा है उनको, कि जो उसके पास काम है कि लोग जब मरे तो उन पर रोना है। अब सोचिए कि ये जो रोने की जो मतलब एक सिंबल दे दिया कि कैरेक्टर ले दिया, और वास्तव में जब वो रोती है तो उसके अंदर कितनी सदियों की जो पीड़ा है वो रिफ्लेक्ट होती है अपने अपने जो जीवन है। तो वो जो कहानी किस तरह गुथी जा रही है, कैसे चीजों को जोड़ा जा रहा है, ये बेहद अहम है। अब डिम्पल उस किरदार को कर पाए, ये डायरेक्टर को भी आज तक उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया था। इससे पहले उनको बॉबी से लेकर के किस तरह की फिल्में बॉबी की, सागर की, सारी चीजें की, लेकिन ऐसी फिल्म के लिए उम्मीद किया जाना एकदम अलग तरह की। उसके बाद आप प्रहार और अलग ये नाना पाटेकर के साथ और तमाम फिल्मों में जो उन्होंने रोल किया, वो उसके बाद वो शेड में, लेकिन ये उम्मीद करना, ये नजरिया देना कि वो एक्टर वो पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता है, कितनी शिद्दत के साथ कर सकता है, लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके बहुत सारी बड़ी बात है, आपको जैसे पता है कि इंडिया के अंदर जब फिल्में आती है तो वो कहा जाता है कि याद वो फिल्में रह जाती हैं कि जो जिसमें हीरो आपका के साथ दुखांत हो जाता है, कि स्मृति में आने के लिए दुखांत जरूरी है, एक लाइन कही जाती है। अब दूसरी स्थिति, लेकिन यहाँ पे अगर स्थिति देखिए तो क्या है कि आज के दिन अगर किसी फिल्म में हीरो को गोली लग जाए तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, बहुत बुरा माना जाएगा। साहब ऐसा हो नहीं सकता कि हीरो को, इंडिया के लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं कि गोली लगनी। अब ये सोशल साइकी भी आपको डील करनी है, आपको उसको मास्टरपीस भी बनाना है, डिफरेंट चैलेंजेस से हमको गुजरना है। तो अगर हम ब्रॉडर कैनवास में देखें, ये जो समझ है भविष्य को देखने की जो चीज है बहुत, और इसीलिए बड़े बड़े फिल्मकार असफल होते हैं। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कृति में कोई खराबी थी। आज भी अगर आप देखें तो मेरा नाम जोकर राज कपूर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। गुरदत्त की जो फिल्म है ये कागज के फूल फ्लॉप हो गई, लेकिन क्लासिक। तीसरी कसम आज की बेहतरीन फिल्मों से एक है, लेकिन मतलब जिसने लोगों को, शैलेंद्र को बर्बाद कर दिया। अब ये जो चीजें हैं वो क्या करेगा क्या, लेकिन वहीं पे गाइड जैसी फिल्म सुपर हिट हो जाती है, जहाँ पे हीरो को आप एक सन्यासी दिखा देते और सन्यासी होकर उसे को अपने प्राण दे देता है। अब आपने वो कॉर्ड, दर्शकों के बीच का वो कॉर्ड आप सही अपने दर्शकों की समझ हासिल कर पाए, नहीं कर पाए। जिसे जैसा जो बिजनेस का रूल है, मैं तो इसके लिए एक बात ये कहूंगा, जो बिजनेस का रूल होता है वो यहीं पे, यहाँ पे भी काम करता है कि रिस्क इज देयर, लेकिन बिजनेस करना है तो आपको रिस्क को लेना पड़ेगा। बस इंपॉर्टेंस ये है कि कितना कैलकुलेटेड रिस्क है, और अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति, आप अपनी बात को कहना चाह रहे हो तो बहुत अहम रहती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। Thank you, sir. Thank you so much. So the second question is from Mr. Ashwini Gambhir. He is asking that what is the difference between archetype
and the stereotype character. Correct. देखिए स्टीरियोटाइप आर्केटाइप जिसको हम मान रहे हैं ना, हमने मिथकीय चरित्र मान लिए, लार्जर देन लाइफ, है ना, वो कैरेक्टर जो है वो आर्केटाइप कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लेकर के चलते हैं, जिसको खास तौर से कैम्पबेल ने इसके बारे में काफी बात की है कि जो लार्जर देन लाइफ ऐसे कैरेक्टर है। अब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जैसे मान लीजिए कि आपका हरक्यूलिस एक कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे आप इन फिल्मों में आप अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देख रहे हैं वैसे कैरेक्टर हो गए ना, कि पूरी या एक समय में आपके सामने मतलब एक महानायक जैसे स्पाइडरमैन हो गया, ये सब आर्केटाइप कैरेक्टर जिनके पास कुछ अलग सी ताकत है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। स्टीरियोटाइप बिल्कुल उससे अलग चीज है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि उसकी इतनी पुनरुक्ति हो चुकी है, इतनी बार वो दिखाया जा चुका है, पुनरुक्ति मानी इतनी बार दोहराया जा चुका है कि वो वैसा ही होगा। जैसे माँ जो है निरूपा राय, मतलब वो बच्चे के लिए दुखी होंगी है ना, माँ का काम केवल यही है ना। अब उस स्टीरियोटाइप कैरेक्टर में तब ध्यान आ जाता है कि कई बार प्ले क्या होता है कि स्टीरियोटाइप कैरेक्टर के अंदर आप शुरुआत में स्टीरियोटाइप दे रहे हो और अचानक आपने प्ले कर दिया, लास्ट में अपने बच्चे को गोली मार देते, तो वो वहां पे अच्छा है ना। तो लेकिन वैसे स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि ऐसा जो कि घिसा पिटा चरित्र ऐसा ही होता है ना, कि मतलब विलेन होगा तो वो बिल्कुल एकदम लोफर लंपट टाइप का होगा, है ना, रेप करेगा, ये करेगा, उस तरह। लेकिन स्टीरियोटाइप इमेज को अगर इसे मैं बात करूं कि अब अचानक स्टीरियोटाइप इमेज है कि विलेन जो है एकदम पावरफुल उसको दिखाया गया है हर फिल्म में, अचानक उसको स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है तो एक फिल्म आई और उसके अंदर परिंदे, और उसमें नाना पाटेकर को दिखा कि एक बार तो वो अपनी पत्नी को जला के मार देता है, लेकिन बाद में उसको आग से डर रहा है ना, उसको डर लगता है क्योंकि वो दहशत तो उसके अंदर है ही। तो ये जो है कैरेक्टर के अंदर आपको जो स्टीरियोटाइप जो है वो भी जरूरत रहती है कई बार कलाकारों को पहचानने के लिए, लेकिन एज ए स्क्रिप्ट राइटर आपके लिए हमेशा स्टीरियोटाइप खतरा बने होते हैं। स्टीरियोटाइप में नहीं कि लगातार आपके सारे कैरेक्टर अगर स्टीरियोटाइप हुए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। आप क्या कहोगे, दोस्त वही है वैसे ही कहोगा, लवर वैसे ही काम करेगी, हीरो वैसे ही काम करेगा, विलन ऐसे ही काम करेगा। तो इससे पहले पिछली फिल्म देख लेते, स्टीरियोटाइप में पुराना घिसा पिटा जो काम कर रहा है, और आर्केटाइप माने महानायक वाली कुछ। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ अपनी बात, प्लीज अगर मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो यू कैन आस्क द काउंटर क्वेश्चन। थैंक यू सर, क्लियर इट। Sir, the next question is from Mr. Vikash Singh. He is asking that what is the role of floor plan and its different components in an ideal film? Floor plan or the floor plan? Floor plan. Floor plan. देखिए फ्लोर प्लान जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे सेट डिजाइनिंग और वो डायरेक्टर रोल आ रहा है कि आप फाइनली जब आप जिस जगह पर आप उसको किरदार पर आप उतार रहे हो, ये डायरेक्टली स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड हिस्सा नहीं है, आप प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें पूछ रहे हो, लेकिन जो कि ऑनेस्टली कहूँ कि ये मेरा एरिया टेक्निकल वो नहीं है, लेकिन फ्लोर प्लानिंग का मतलब मोटे तौर पे जो आप इस तरह समझिए कि जो सेट पे जब आप आते हो तो सेट पे जो चीज पर्दे पे कैमरे के सामने जो दिख रही है और जो कैमरे के आगे नहीं दिख रही, उनके बीच में एक रिलेशन आपको मैनेज करना, तो उस चीज को आप कितनी खूबसूरती के साथ देख रहे हो, तो कि एक समय में आपके लिए एक साइकोलॉजिकली बैलेंस करना बड़ा कठिन काम होता है कि एक समय तो आपके सामने सपना चला जो कि आप 2x3 की स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, लेकिन सामने आपको वो सारी चीजें मैनेज कर रही है कि एक तरफ कैमरा मैन है वो पीछे बीड़ी पी रहा है, हाँ, ये इधर कोई है वो उधर चीजें देख रहे, ऊपर कैमरे देख रहे हैं, और उसके बीच में आपको माहौल क्रिएट करना है एक अलग तरह का। तो ये जो माहौल क्रिएट करना और बाकी जो रियलिटीज है इनके बीच में एक सामंजस्य बिठाना जो है वो फ्लोर प्लान का एक हिस्सा है। Thank you sir, thank you sir. The next question is from Sansruti Sahu. She is asking, which movies according to you are most visually appealing movies? ऐसी कोई मूवी का एग्जाम्पल जिसमें विजुअल फ्रेम्स एंड सीन्स स्टोरी में वैल्यू एडिशन करते हैं। लास्ट लाइन आपने क्या बोली? ऐसी कोई फिल्म का एग्जाम्पल जिसमें विजुअल फ्रेम्स एंड सीन्स स्टोरी में वैल्यू एडिशन करते हैं। देखिए ये चॉइस की बात है, और ये एक फिल्म देना तो वास्तव में मेरे प्रति भी जाती होगी और आपके लिए भी,
लेकिन मैं कहूँ कि मैं गुरुदत्त का फैन रहा हूँ। सिर्फ कई बार दोनों चीजों से चीजें बयां होती। गुरुदत्त की फिल्मों ने, गुरुदत्त ने अपने किरदार को आंखों के जरिए बयां किया। एक पुरुष पात्र अपनी आंखों के जरिए अपना जो दर्द, पीड़ा, समाज के प्रति सारा विद्रोह है, वो सारी चीजें अपनी आंखों के साथ, उसने कैमरे के लेंस चेंज करवा दिए, और वो जो आंखों के जरिए जो अभिनय करने की जो चीज थी ब्लैक एंड व्हाइट में, स्टिल इट्स मार्वलस। जब आप उन चीजों को देखते हैं, उनका और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री देखते हैं, तो जैसे मार्वलस की वो भी विजुअल अपील है कि आप, लेकिन उसके लिए वो हुनर होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि आपको, मतलब निर्देशक या एक्टर खुद कहे कि साहब सिर्फ जो और सिर्फ आप मेरी आंखों में देख करके बातें कर सकते हो, मैं बयां कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ ये जो विजुअल्स है वो भी विजुअल है, और दूसरी तरफ आप बाहुबली को देखते हैं, वो मास्टरपीसेस हैं। महिष्मती का पूरा सेट बनाया हुआ, पूरी महानगरी बना रखी है, जिसमें ग्राफिक्स है, जिसमें विशालकाय झरना है ना, जहाँ जहाँ से जिसमें सस्पेंस क्रिएट होता है। पूरी महाभारत, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पूरी महाभारत को उन्होंने, महाभारत और रामायण को कॉम्बिनेशन करते हुए उन्होंने एक नई कृति रच दी, और लोगों ने पहचाना, लोगों ने उसको पसंद किया बाहुबली को। बाहुबली क्या, लोग कहते हैं कि आज के दिन आप रामायण सुनाइए तो वो रामायण और महाभारत का, और ये मैं नहीं कहता, वो उनके फिल्म मेकर्स कहते हैं, इट्स नथिंग बट अगेन द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द रामायण एंड महाभारत। तो लेकिन ये उस सेट को दोबारा अलग तरह से जीवित करना, वो रथ, वो चीजें, तो वो जो है विजुअल अपील, नो डाउट, एक विजुअल अपील वो है, और एक विजुअल इमोशनल विजुअल्स अपील है। तो ये दोनों ही, अगर मैं दो उदाहरण दूं, ये इंटायर रेंज है, तो मेरी पसंद में दोनों ही है। मुझे बाहुबली भी अच्छी लगी विजुअल और सेट्स और सारी चीजों के हिसाब से, और मैं पैसा का भी नहीं। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछूं? अच्छा, आप म्यूट है। जी सर, आप जरूर पूछिए। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, आप अभी स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, हमारी हिंदी फिल्मों में या इंडियन फिल्म्स में, मतलब इवन मैंने कई साउथ की जो डब फिल्में हम देखते हैं उनमें भी कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो मेल लीड और फीमेल लीड होती है, वो मतलब शुरुआत ऐसी होती है कि वो आपस में नोक-झोंक होती है, और उसके बाद आगे उनके बीच में प्यार होता है। मतलब कुछ इस तरह से कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि जब वो पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच में लड़ाई होती है, किसी तरह की नोक-झोंक होती है, और फिर आगे जाकर के वो स्टोरी जो है वो हीरोइन उसे पसंद करने लगती है या कुछ ऐसा। पर कई बार वो जो नोक-झोंक होती है वो कभी मतलब बहुत भद्दी या बहुत मतलब जिसको हम आज की तारीख में ईव टीजिंग जैसा कह सकते हैं हम, वो उस लेवल की होती है कि वो छेड़खानी जैसी ज्यादा होती है। और कई मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में शायद जो ईव टीजिंग का माहौल है, कई बार वो नोक-झोंक की वजह, मतलब वो जो फिल्मों में देखने को हमको मिलता है, तो एक इम्प्रेशन ऐसा बनता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने का, या जो एक शब्द है पटाना, उसके लिए यही एक तरीका है, और ये तरीके से हम लड़कियों को ज्यादा अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं, और इसी वजह से ईव टीजिंग बढ़ती है। तो क्या लगता है ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया जाना चाहिए, या इसको थोड़ा सा सर समझाइए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न किसका है सर? मैं शलभ श्रीवास्तव सर। शलभ जी सर, स्टीरियोटाइप से रिलेटेड सर इसी में एक क्वेश्चन है सर। स्टीरियोटाइप से जितना अभी हम समझ रहे हैं, इट इज लाइक रिलेटेड टू हमारी जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जैसे कोई एक कैरेक्टर जो है वो रिजिड होकर के ही फॉलो करता है और उसको ब्रेक नहीं करता है, तो आई थिंक हम उसको स्टीरियोटाइप कैरेक्टर कहते हैं। जैसे सर ने अभी टीजिंग का एग्जांपल दिया कि एक परंपरा चली आ रही है कि इस तरह से छेड़ करके लड़कियों को पटा सकते हैं। गर्ल्स को लेकर के कि हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो हमने कई मूवीज में देखा है कि ऐसे स्टीरियोटाइप कैरेक्टर हम रखते हैं। तो ये एक विकृत मान्यता, हाँ नहीं, स्टीरियोटाइप माने विकृत मान्यता नहीं हुई। वो अगर विकृत, जहां तक शब्द की बात है, स्टीरियोटाइप माने ऐसा कैरेक्टर जो लगातार उसी रोल में लगातार बार बार आता रहा है, उसमें कोई नयापन नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया निरूपा राय की माँ की एक छवि थी, तो बार बार हर फिल्म में बेटे के लिए त्याग कर रही है, चीजें कर रही हैं, और अंत में मतलब पूरी जीवन भर पीड़ा झेलनी है, तो माँ का एक कैरेक्टर स्टीरियोटाइप कैरेक्टर हो। अब माँ के कैरेक्टर में नयापन किया जाए, अभी तक इसके फिल्म में जैसे थप्पड़ से पहले जो कैरेक्टर था कि उसमें आमतौर पे महिला जो वो पीड़ा सह रही है, तो लगातार स्टीरियोटाइप कैरेक्टर हुआ, अचानक फिल्म में वो रिएक्ट करती है, तो वो स्टीरियोटाइप उसने ब्रेक किया। तो स्टीरियोटाइप माने जो रूढ़ी का सेंस निगेटिव नहीं है, रूढ़ी का मतलब पुनरुक्ति, बार बार ऐसी चीज इसमें कोई नयापन नहीं है,
है ना, बासी किरदार जिसे कहते हैं, एकदम बासी पुरानी चीजें, बार बार वही चीज है, उसमें कोई नयापन नहीं है ना। दोस्त के लिए दिया कि साहब क्या, हिंदी फिल्म में दोस्त का मतलब क्या है कि लास्ट तक मरना है तेरे को पक्का है ना। मतलब शोले में मर गया तो उसके बाद हर कि मतलब आप इंतजार करते रहे तो शोले से लेकर तेजाब के बीच में कि चंकी पांडे गाना गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पक्का मरेगा पक्का। तो वो जो है वो फिक्स्ड हो गया, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। अब मैं बात करता हूँ दूसरे आपके जो सवाल की है, उसमें जो रूढ़ी वाला शब्द है, रूढ़ी का अर्थ मतलब बुराई बात से नहीं, रूढ़ी जो शब्द आया है वो आया है यानी मतलब एक शब्द इतनी बार इस्तेमाल हुआ है कि उसी चीज में पक्का हो गया है, जड़ हो गया है ना, रूढ़ हो गया है, उससे शब्द आता है रूढ़ी। तो ये एक तो बात मैंने ये स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात जो सर ने कही, शलभ जी ने, मैं उसे काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो चीज है जो पुरुष, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी अनडाउटेडली ये है और इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हालांकि आज की फिल्में देखें तो पहले एक दौर की फिल्में थी जिसमें मतलब हम लोग भी बचपन में देखते कि लास्ट फिल्म में क्या होगा कि सारी फिल्म होने के 2.5 घंटे के बाद एक बार एक शादी होनी है, तो वो उसके बाद तक फिल्म खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अब वो शायद हम उन सारी चीजों से उबर चुके हैं। अब दूसरी चुनौतियां लेकिन जरूर आ रही हैं। जो बात आपने कही वो काफी हद तक जायज है कि हम कैरेक्टर के जरिए कई बार हम ये देख रहे हैं कि हीरो जो है बदमाशी कर रहा है, गाने गा रहा है और फाइनली अंत में कुछ ऐसा करता है कि जिसके बाद एक्ट्रेसेस, जो मेन लीड एक्ट्रेस है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जितनी भी बार तो एक तो चीज ये है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा यथार्थ है कि जो सिनेमा बार बार कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आई आल्सो एग्री, शराब नहीं पीना चाहिए, भी आल्सो एग्री, महिलाओं को के साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया जाना है। मैं हीरो की बात नहीं कर रहा, मैं विलेन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर सारा विलेन सारा काम भला काम करे तो हीरो और उसमें अंतर क्या है? मतलब अभी तो ये बात हो कि भाई साहब आप उसको सिगरेट भी नहीं दिखाना है, शराब भी नहीं दिखाना है, वो भले लोगों के बीच में गाली गलौज भी नहीं करनी है, तो कुछ भी नहीं करना है उसे। तो एक जो दूसरी जो फिल्म मेकर्स का जो तर्क है, आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, लेकिन उनकी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई साहब हम क्या करें कि जिससे वो थोड़ा सा विलेन लगे, करना क्या है। तो अगर वो सारे उसके अंदर भद्र चीजें हैं कि वो कोई अभद्र शब्द में यार करके बात नहीं करता, बड़े सम्मान के साथ बात करता है, तो क्या करे वो एक दिक्कत। या दूसरी बात है कि साहब आज के दिन शायद कोई भी फिल्म में, एक फिल्म में ये ईव टीजिंग की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी किस्म का मान लीजिए एक दृश्य है और एक हीरो एक डिसेंट ढंग से देना चाहता है कि साहब, मतलब ये बात उठी मेरे दोस्तों के बीच में, एक चर्चा उठी, तो उन्होंने कहा अगर मैं चाहता हूं कि एक हीरो को मैं चाहता हूं कि एक खालिश ढंग से, एक ऐसे तरह से वो प्रेम प्रस्ताव उसको एक्ट्रेसेस को देना, कैसे दे जिसपे कोई क्वेश्चन ना उठे, जिसको पूरी तरह से, जिसपे आप एकदम मुझे प्रूफ बता दीजिए कि इसके ऊपर कोई लॉ एक्ट नहीं करेगा। तो बड़ी जो कल्पना, यथार्थ और इसके बीच में चीजें, मतलब मुझे लगता है कि कुछ हद तक सिनेमेटिक लिबर्टी देनी चाहिए। कहाँ तक ये छिछोरेपन की तो नो डाउट इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, लेकिन यथार्थ के साथ ही वो चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि उड़ता पंजाब के अंदर अगर ड्रग्स लेते न दिखाएं तो कैसे हम यथार्थ दिखाएं, ड्रग्स के ऊपर फिल्म कैसे बनाए। लेकिन ड्रग्स को चुनौती है कि ड्रग्स महिमा मंडित करते हुए न दिखाई जाए। मतलब वो चुनौती एक्टर के सामने है। यानी अगर आप दिखा रहे हो तो उसके अंदर वो उसका जो चेहरा है वो उसको नायक की तरह नहीं दिखाना चाहिए, उसको प्राउड फीलिंग करके नहीं आने चाहिए, चाहे विलेन, हीरो क्या विलेन भी नहीं करे। किसी भी तरीके से उसके अंदर जो विद्रूप मानसिकता है, उसके अंदर का जो घटियापन है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समाज के यथार्थ को दिखला करके ही आप आदर्श की ओर। मैं इस मामले में प्रेमचंद को कहता हूं कि वो जिस तरह से उन्होंने जो ब्लेंड बनाया कि यथार्थ भी था और उसमें आदर्श भी था, यथार्थ और आदर्श का जो ब्लेंड की वो बहुत अहम होता है कि रियलिटी को भी आप प्रोजेक्ट भी कायदे से कर पाए और साथ ही साथ एक सही रास्ते पे ले भी जा पाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप रिश्वत देते नहीं दिखा सकते, तो नमक का दारोगा ना बनाई जाती, नमक के दारोगा में तो रिश्वत ले रहा था। तो ये तो हमको तो दर्शकों को भी यहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि सिनेमेटिक लिबर्टी इस तरह से कि जहाँ यथार्थ दिया जा सके, हाँ यथार्थ को महिमा मंडित करते हुए न दिखे, बुरी बातों को महिमा मंडित करते हुए न दिखे। जैसे मैं आपको एक प्ले के बारे में बताऊं, एक किफाकत नाम का प्ले था, वो उन्होंने बताया कि जितना ऑप्रेसर होता है उसके अंदर कितना स्ट्रगल चलता है,
इतना कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया परिंदा, कि विलेन को आपको दिखाना, आपने अभी आप मोगेम्बो दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म में मजा कर रहे हो, बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है, खा रहा है, दूसरी तरफ हीरो क्या वो भुगत रहा है, 30 सेकंड के लिए हीरो मर गया तो वो क्या हुआ? तो बच्चा जो आ रहा है वो डायलॉग किसका याद कर रहा है? मोगेम्बो का डायलॉग याद कर रहा है, महिमा मंडित आपने उसको किया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दूसरा अगर एक किरदार है, एक शोले का किरदार है, उसको भी कहा गया कि कुछ हद तक महिमा मंडित किया। लेकिन इसकी तुलना में जिस देश में गंगा बहती को याद कीजिए कि वो प्राण का किरदार बार बार वो अपने गर्दन पे हाथ रखता है, और उसके बारे में पूछा गया कि ये क्यों रखा? उनको उसके दिमाग में उसको डर है कहीं ना कहीं उसको एक न दिन उसके गर्दन पे फांसी का फंदा आएगा। तो ये जो चीज है कि उसके अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है, तो विलेन को विलेन की तरह से दिखाना, विलेन को उस तरह से दिखाना कि उसके अंदर एक कमजोरी है, हम उसको महिमा मंडित ना करें, हम उन बुरी चीजों को महिमा मंडित ना करें, लेकिन यथार्थ दिखला पाए, इतनी सहूलियत होनी चाहिए। मेरा मत है, हो सकता है आप इससे सहमत हो। कोई काउंटर क्वेश्चन है तो प्लीज कहें। मैं अगर मेरे किसी प्रश्न से, मेरे किसी भी अभिव्यक्ति से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा मांगता हूं पहले ही, लेकिन आई थिंक यू विल गिव मी द चांस टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। Certainly, sir. Sir, one more question is there by Mr. Gambhir again. I think very much related to the session. That's why I'm taking it up. It is that what are the challenges and things which should be kept in mind before writing the script for when there is an adaptation of an autobiography? Biopic. Yes. Yeah. Okay. All right. इनके अगर एक दो प्रश्न और हैं तो वो साथ में दे दीजिए, और लोग को भी मौका मिले, इनके सारे प्रश्न एक साथ पढ़ दीजिए। इनके ये अभी तो यही फिलहाल तो यही प्रश्न है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपके अच्छे प्रश्नों के लिए। पहली चीज जो बायोपिक है, आप उसमें बहुत अहम चीज है कि देखिए एक इंसान की एक छवि सामने चस्पा हो गई है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, प्रसून जोशी जी का उदाहरण देना दो, मेरे उनके साथ अच्छे संवाद हुए, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जब आप मिसाल के तौर पे मिल्खा सिंह का कहानी क्या है कि साहब गए और एक उन्होंने एक जो जीत है वो हासिल कर ली, जीत से थोड़ा सा रह गए, लेकिन उस समय इंडिया के सबसे बड़े धावक थे, ये उनकी छवि थी, और जो बचपनी हमारे पास हमारे सबसे बेहतरीन धावक वही थे, हालांकि वो सक्सेस हासिल नहीं किया, ओलंपिक के पदक से चूके हुए। अब ये कहानी उनकी कुल मिलाकर के ये इतनी कहानी है। अब इस कहानी के अंदर किस तरह से ये कहानी क्या है, इस कहानी से के बारे में अगर आप बताएंगे तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अब इसके अंदर मानवीय पहलू क्या है? अब मानवीय पहलू को जब आप इंसान, क्योंकि उसको आपको इनको सूचना से इंसान के का एक सफर है, तो यहाँ के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि सामाजिक यथार्थ क्या थे। अब सामाजिक यथार्थ उन्होंने देखा कि साहब विभाजन हुआ और मिल्खा सिंह आए थे, तो वो मुड़ के देखने को जो उनसे कहा कि वो विभाजन की जो संतरास थे उससे जोड़ करके उन्होंने दिए। अब सवाल था कि क्या मिल्खा सिंह के अंदर ये रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, ये तीसरा प्रश्न उठता है। अब मिल्खा सिंह, अब इसका जवाब मिल्खा सिंह बेहतर दे सकते, लेकिन प्रसून जोशी जी को और उनके बीच में जो एक बात हुई कि कई बार राइटर को पात्र को खुद नहीं पता, जैसे हम और आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो कई 10 चीजें ऐसी बताएगा जो मुझे नहीं पता थी, आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो जो स्टडी है हो सकता है वो सच हो, यस उसको सिनेमैटिक लिबर्टी कह लीजिए, वो चीज है बेहद अहम है। तो इसी तरह जो रिसर्च है, इसी तरह से भगत सिंह और जो फिल्में आई भगत सिंह के ऊपर, अब उसमें जो आपको बताएं कि रिसर्च टीम स्टडी ये कर रही थी कि क्या हुआ। अब ये नहीं करना है कि 1921 में क्या हुआ, 1915 में क्या, 1916 में क्या हुआ, इतिहास बता रहा है। कहानी शोध इस बात पे हुआ कि साहब वो खाते क्या थे, उनका भुट्टे खाया करते थे सब लोग। तो भुट्टे खाना, ये मस्ती करना और एक दूसरे से इस बात पे लड़ना, ये तेरे से पहले मैं मरूंगा, आपस में ज्वेलसी भी जो है इस बात की शहादत कौन देता है। तो दो दोस्तों की ज्वेलसी ऐसी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के बीच में कि मरता कौन है यार, पहले ये देखते। तो ये इंसान जो ढूंढना कि कंपटीशन है, कंपटीशन उस दौर में भी था, शहादत कौन देता है पहले, कैसे देता है, तेरे से पहले मैं मरूंगा, और प्यार भी करते हैं। तो ये जो इंसान है और इंसानियत जोड़ना, तो बायोपिक के अंदर सूचनाएं अगर आप देंगे तो सूचनाएं जब आपके सामने आती, कई मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आप मानोगे नहीं कि डॉक्यूमेंट्रीज लिखनी है या बुक लिखनी है, तो उन्होंने क्या किया कि वो 20 किलो मतलब किलो में कागज भेज दी कि साहब इतने अखबार की क्लिपिंग है, ये है रैंकिंग पे लिखना है, आप लिख के दे दो। नहीं हो सकता। किया होगा फिर आपके अंदर वो इंसान होना, क्योंकि
फाइनली आप जो लिख रहे हो वो इंसानों के लिए लिख रहे हो, मनुष्य के लिए लिख रहे हो। मनुष्य और आपके बीच में दो ही चीजें साझा है, वो संवेदना। तो अगर आपने उस संवेदना को साझा कर रहे हो, क्योंकि दर्शक और आपके बीच में वही एक चीज है कि अगर आप उस तरीके से, अगर आप खुद महसूस कर पा रहे हो, तो आपकी कलम चलेगी, आप उन्हीं चीजों को शोध में लेकर के आओगे, वही चीजें उतारोगे और वही चीज लोगों की भावनाओं को छूएगी। थैंक यू सर। Do we have more questions? I think we can now wind up. हमारे पूरी फिल्म का जो समय होता है वो 1:59 हुआ है। हमारे ऑडियंस we are having all of people are very punctual. So once again, I would like to thank Professor Dr. Amitabh Srivastava sir. And just two words that it says whenever we listen to some eminent personalities, it is said that the experience speaks. So when sir was delivering his lecture or when he was interacting, so the social aspect, or since I'm from the background, so I say the social, psychological aspect, the cultural elements, which actually somehow he inculcated and he tried to share with us were brilliant. That is the way he expressed, and we look for such future endeavors, and we would like again him to be with us, since we are having a course of film production with us. So somehow if we can have sir again, since he's having digital art and writing, so we would again like to welcome you, sir, and thank you wholeheartedly for your wonderful section. Thank you, sir. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot to entire MCRP family. Thanks to each and every audience. आपके सवाल, आपके जिस धैर्य के साथ आपने मुझे सुना और इतना ज्ञान आपके पास रहते हुए मुझे सुना, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। क्योंकि ये जो प्यास है, यही महत्वपूर्ण है। प्यास को बनाए रखें, क्योंकि वास्तव में यही प्यास जो होती है, ये हमको जिंदा रखती है, एक एज एन एकेडमिशियन के रूप में जिंदा रखती है। और ये आप लोग बधाई के पात्र हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी, खासतौर से हमारे कुलपति जी प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर, उनके प्रति मैं पुनः अपने आभार को व्यक्त करता हूँ। पवित्र सर के प्रति, डॉक्टर शैल, डॉक्टर गजेंद्र, ईच एंड शलभ जी, अब हर एक व्यक्ति, सामने राघवेंद्र जी दिख रहे हैं, नागेंद्र जी, and numbers of the participants are there, चंदना जी देख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नाम हैं, और देवेश जी, किसके कई मित्र हैं और कई वरिष्ठ हैं हमसे। मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आभार। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Vikas. Next session will be resumed by 3 p.m. सुरेश दीक्षित सर रहेंगे आप लोगों के साथ में, जो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी पर आपसे बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन इज गोइंग। If any queries left, कुछ लोगों ने बात की, they can mail me. I would like to have that. अगर किसी को कुछ पूछना है, thanks a lot. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.